म्यूट पे हो, म्यूट पे. Hello and welcome to the Oaktree Dugout, the show where we talk cricket, come up with some funny jokes, and try and find solutions to world peace. Mera naam Neerav hai. On Indira Gandhi's birthday today, there was a party held at Narendra Modi Stadium and in Ahmedabad, and Australia gate crashed India's party and won the 2023 World Cup. So congratulations to Australia. For all our Indian fans, I'd say I'd quote the immortal words of Akshar Patel in season 7 of Breakfast with Champions, where he says, "It is what it is." Um, hello, thank you for joining us, guys. Amol, Swayam, Suleiman. No, not a black day. It was a yellow day. Soumyadeep, Muskan. So sad. Yes, Sumit. But again, I'd quote Akshar Patel. It is what it is. Hota hai, chalta hai, dunya hai. We are here on the Oaktree Dugout now. And मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ. 3 is an odd number and I have 3 odd people with me. मेरे साथ हैं फर्स्ट अजिंक्य. बहुत ही निराश हैं. मैच के हाफ टाइम पर इन्होंने बोला था गाइस नथिंग इज इम्पॉसिबल, पर आज मैंने बोला भी था राज इंडिया को को जिताने के लिए कुछ नहीं किया, प्रूविंग दैट डूइंग नथिंग इज पॉसिबल. आपको करना चाहिए था कुछ. रुद्र को बोला था फोन करके कि भाई हमने 1983 में 183 डिफेंड किया था. नथिंग इज इम्पॉसिबल, करेक्ट. ऑल्सो वी हैव शिशिर. इनको भी हाफ टाइम तक भरोसा था, जोश था, लेकिन अब लग रहा है वो थोड़ा एनर्जी सेविंग मोड में आ गए. एंड ऑल्सो आईड लाइक टू वेलकम राज. इन्होंने ट्रेविस हेड पे बहुत सारे जोक्स मारने की कोशिश की. टुडे द जोक्स ऑन यू, Raj. On me, entirely on Raj, me. This is to remind you that you can say what's on your mind, but always mind what you say. Welcome, guys. Welcome, Divesh, Rakesh, Salim. Thank you for joining us. Rohit, yes, it took just one day. But again, hota hai, chalta hai, dunya hai. Let's just quickly get into what happened in the match. I think pretty much everybody saw it. Firstly, Raj, you want to tell us what happened, like, up front? I don't want to go over this. I don't want to repeat this at all. But yeah, मतलब it started off as a party. सब लोग थे वहाँ पे. In fact, actually, Kapil Dev नहीं थे. उन्होंने आज कहा है he was not invited, surprisingly. But apart from, like, Prakash Padukone was there, Shah Rukh Khan was there, Asha Bhosle ji थे, Dhoni wasn't there. But in the midst of all the party, Pat Cummins decided to bowl first, and half of India started celebrating क्योंकि हमें लगा कि यार ये final में bowling first क्यों कर रहा है. Obviously, Cummins knew something that a lot of us didn't. It was an unusually slow pitch, जिसपे रोहित शर्मा, who doesn't care about the pitch because वो मतलब पॉकेट में अपने खुद का पिच लेके घूमते हैं, he started playing his usual self. He was fabulous. He was absolutely fabulous until a fabulous catch by a guy running backwards, almost reminiscent of Kapil Dev in another World Cup final. Travis Head took him with an absolutely brilliant catch. और वो कैच के बाद मतलब Shreyas Iyer out हो गए. फिर suddenly India was like, let's go back to this is Rohit's what 8th 40 innings without getting to 50, right? In this ऐसा कुछ नंबर है, क्या नंबर है? वो जर्सी में भी 45 लगा हुआ है. Jersey में भी 45 लगा हुआ है. He really likes these 40s now, sadly. Something told me that today he was looking for a longer run. He was taking lesser risks than he normally does. Yep. हाँ, मतलब initially it was not as quick as it usually is. मतलब वो पहले मेरे को याद है 17 बॉलों में उनके 15-16 रन ही थे. बट फिर एकदम से उन्होंने अनलीश किया था जब एक छक्का और चौका कंसेक्यूटिव बॉल्स पे मारा, और फिर उसके बाद आई थिंक कोहली ने भी 3 कंसेक्यूटिव फोर्स मारे थे. तो मुझे लगा यार ये तो रिवर्स ऑफ 2003 होने वाला है, बिकॉज़ नाउ बोथ ऑफ दीस बैटर्स आर लुकिंग लाइक यू नो इन देयर ओन बीस्ट मोड्स. करेक्ट. I don't know, yaar. I think it just looked like he identified early on that the pitch wasn't very simple, so he was taking very calculated risks like he usually does. But फिर Glenn Maxwell, who's been probably the story of the World Cup and Neerav's favorite person to talk about all the time, he came on and bowled, and it just happened कि भाई मतलब आप expect नहीं कर रहे हो wicket and then चली जाती है. सलीम, अच्छी टीम हार गई और कम अच्छी टीम जीत गई. मतलब on the day, तो I have to be honest and say on the day they were better
मतलब बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, कम विकेट अच्छी टीम ने भी 9 मैचेस लगातार जीते हैं. हाँ. मैचेस जीते तो हैं, including the यही- final, which matters the yes, most. of course, yeah. तो ठीक है, इंडिया ओवरऑल आई वुड से कि ठीक है, बेटर टीम थी, बेटर परफॉर्मेंसेस थे. मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ कि पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों हम जीते, मगर मैन ऑफ द उसके सीरीज बावजूद आल्सो. मैन ऑफ द सीरीज भी जीत गए, मगर ट्रॉफी नहीं जीत गए. Blue cap But भी it's, जीते. you know, that's the thing, we have to support our team and, you know, Yeah. back them irrespective, जीते हारे, you know, अच्छी टीम है. वक्त आएगा, अच्छे दिन आएंगे उनके भी. So ये क्या, एक तो 7.5 ही होती है, 7.5 ही समझ में आता है ना आप लोग को हाँ, कि वो नहीं, वो सब क्या 2013 7.5 इज बेसिकली एक डार्क फेज ऑफ योर लाइफ. 7.5 साल का तो लग My जाती है, life, इट्स लाइक okay. शनि हाँ, okay, ऑफ okay. एनीवन्स लाइफ, अच्छा, या अच्छा, मतलब हाँ, किसी भी ठीक है, फेज में. हाँ, तो वो लग जाता है, तो इट्स लाइक कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लाइक द लक इज नॉट विथ यू फॉर दो 7.5 years. तो आई थिंक अब तो 10 साल हो गए, अब तो मेरे ख्याल में 7.5 अरे घंटे ही तो यार, अरे यार, 7.5 घंटे ही तो हुए हैं. 7.5 घंटे, जब मिड इनिंग्स था एंड जब हम सबको लग रहा था कि द स्कोर इज मतलब lesser than what you would want, but शायद थोड़ा चांस है. I was saying भाई इतने एक सेकंड, sorry, let's go back a bit. ठीक है, sorry हाँ, to okay, interrupt. हाँ, Let's go back a bit. Yeah. Yes, power play 80 for 2, again respectable. Obviously रोहित को पता था कि पिच लो होने वाली है और जल्दी शुरू कर दो. Then what happened, Raj? Yeah, then once Shreyas Iyer came in right after that, and एक मुझे statistic मैं ढूंढ रहा था, like actually Shreyas, we've praised him a lot over the last few matches because he's had a bunch of continuous 50 plus scores. लेकिन he's walked out to bat in the first 10 overs only 3 times in this World Cup, and उनके scores हुए हैं 0 versus Australia, 4 versus England, and today it was 4 versus Australia. So राज, मतलब he got out early, I'm sorry to and that interject. हाँ, I'm sorry to interject, but यार वो क्या 10 के एंड पे आया था. So would that Correct, really have but- played a part? I don't know. No, but I'm saying that wicket was so crucial. Matlab, it's happened before that he's gotten out early when he's walked in early, and his wicket was so crucial because पूरी mindset change हो गई. Like after that, KL and Virat played much more But वो जब conservatively. भी वो सोच रहे थे कि I'm भाई sorry. आगे सिर्फ स्काई है और जडेजा है, तो they played a lot more conservatively, and overall हम slow गए, and then wickets also kept falling at regular intervals, and which is why overall जो par score आप expect करते थे, maybe we were hoping for a 260, 270. This is definitely not a 300 pitch. We were hoping for a 260, 270, but end में सिर्फ 240 हो गई. But the fact is that it was a very sluggish pitch, नहीं मतलब Yes, जो yeah. भी तो is it lack of intent or was it कि they were really struggling playing their strokes? I think it was also reverse swing भी तो हो रहा था ना बहुत टाइम बाद. वो तो बाद में हुआ After था. the Let's say 30th over हाँ. mark. 30th over 10 से mark. 30 I think it was also 10 से 30 की it was बात also करते हैं, the जब 80 okay. and 10 It was और also फिर अगले 20 में 80 भी नहीं पड़े. तो I think it was we were short of 160. yeah, it was also the intent also comes from from fear of the big stage. मतलब वही है कि अगर 3 विकेट गिर गए और अब आपको मालूम है लोअर ऑर्डर ने लोअर मिडिल ऑर्डर ने इतनी बैटिंग नहीं की है, तो अब आप एकदम से कोई रिस्क लोगे तो बिकॉज देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस. आई नो नॉकआउट पहले वाला गेम भी था, बट दिस इज एन एंटायरली डिफरेंट प्रेशर, एंड स्पेशली जब एकदम से वो मोमेंटम शिफ्ट हुआ. रोहित का विकेट गिरा, क्योंकि शुभमन के विकेट के बाद कोई मोमेंटम चेंज हुआ, रोहित के विकेट के गिरते ही. और मैं श्रेयस पे आना चाह रहा था नीरव, कि जो राज ने कहा, मैंने ये सुना कि इट वाज आल्सो a case of him anticipating a short ball. Yes, because of I which agree. he was in that position. अब it also goes back to the first match जहाँ पे श्रेयस short ball पे out हुआ था while trying to cut. But I don't know, maybe that was in his mind. I don't know. It was just a little ball deviated a bit. He wasn't behind the line of the ball. हाँ. I mean, it can happen. I mean, it can happen. Which also happened, I think, with Virat. He was not behind the line of the ball. उसका तो बैट एंगल पे था ना, इसलिए. नहीं, एंगल था, बट बॉडी तो बिल्कुल दूर बॉडी से खेला था उसने. नहीं, बट वो शॉट ही वैसा खेल रहा था ना, बॉडी से दूर ही शॉट खेल रहा था विराट. विराट का डिसमिसल reminded me of बाबर आजम का डिसमिसल जो यही ग्राउंड पे हुआ था इंडिया के खिलाफ, where Pakistan also had a very slow but careful partnership at that time, and Babar Azam got out. मतलब they were waiting to explode, and वो भी मतलब he was trying to run it down to third man. He also chopped it onto the stumps on a relatively slow pitch. तो वो थोड़े मुझे parallels लगे उस वक्त. Of course, I think India scored better than that because KL's innings, while it was slow, it did give our total some respectability. Yeah, but the fact is that the pressure was always on us. Na? Matlab, we were not putting
pressure on the bowlers ever. Like एक चौका पड़ा है 20 ओवर में is a shocking stat, right? 40 ओवर में Absolutely, 4 yeah. चौके हैं. जैसे मैं वही बोल रहा था कि वो पाकिस्तान वाला आप कंपैरिजन कर रहे हो तो वहां तो 5 के रन रेट से बन रहे थे ना, 5-5.5 के रन रेट से. यहाँ पे तो 80 फॉर 3 और 2 इन द फर्स्ट 10 और फिर 115, सो 35 रन पड़े 10 ओवर में अगले, और उसके बाद 40 के आसपास. तो आई थिंक वहीं पे मैच काइंड ऑफ फिर वो था कि लेट एक्सप्लोजन होगा, लेट फ्लरिश होगी, लेकिन वो हो नहीं पाया. Because 22-23 ओवर में मिचेल मार्श आए, 2 ओवर में 4 रन या 5 रन, फिर 6-8 ओवर बाद ट्रेविस हेड आए, पार्ट टाइमर्स के अगेंस्ट भी. यस, I think that was the biggest problem. ना part-timers gave away 44 runs or something of that sort. यार सब मिलाओ अगर Maxwell, Marsh and Head 40-44 runs they gave away in 10 overs. So that was, I think, where we really missed a trick. एक वक्त पे लग रहा था there were 30-40 Australian fielders because we were not able to find any gaps. What was the intent therefore to send Jadeja? Because it seemed like it was okay, take on the spinners or part-timers. I think it was lefty-righty combination. More than that, मेरे को ये भी लगता है कि lack of belief in Surya's ODI potential. तो उनको लगा कि उसको लास्ट के 10-12, मतलब it's like if he comes at around post 35-36 से, हाँ, तो तब क्या होता है कि it's like उसके माइंड में रहेगा कि मैं जैसे T20 में 8वें-9वें ओवर पे आ रहा हूँ जहाँ वो आता है. So then because उसका माइंडसेट का इशू है अभी तक जितना लगा है ODI में अपन. आज भी वो खुल के नहीं खेला. आज तो Surya's had one good innings this cup, I think. I think it was against England. वो भी मतलब similarly tricky pitch. But it was a very similar tricky pitch. Absolutely. उस वक्त he really played well. Maybe I don't know whether it was a lack of belief or whether it is the fact that left-right combination. But obviously neither of the decisions really worked because it happens. But I think it also is जडेजा को बहुत अच्छी बॉल भी मिली थी यार जिस पे आउट हुआ. Like it was 2 back-to-back deliveries, and that is when reverse swing had just started to happen, and then that ball to dismiss KL that happened right after that. Oh my god, that was like Wasim Akram, yeah, left arm round the wicket, full aisa aata hai, and then it straightens. That was quite something. I hate to say this right now, but I had said watch out for Stark because the guy has probably played his last one-day match. You also said Raj ki India will lose. I didn't say that. Itna bhi bhai mujhe don't send the trolls my way, bro. But champion bowler. Got to applaud the Indian team for all that they have done through this cup, but got to applaud someone like Mitchell Stark for being the champion that he was. Yeah, what I have to applaud honestly also is Patrick Cummins ka captaincy. Because, yeah, it was very good today. Yeah, I mean दिख रहा था ना कि अच्छा कैप्टन है. मुझे आज तक फेथ नहीं था. But captaincy पे उसके question marks थे before the World Cup. I've never liked his captaincy even through this World Cup, yeah. In fact, but today it seemed really good. Every field placement. Also, I don't know how many of you saw the toss, but he wasn't confident enough to say that we are bowling first. तो वो काफी झिझक के बोला उसने. यार वो थोड़ा I think एक वो होता है ना, एक तो रवि शास्त्री जैसा आदमी इतनी एनर्जी बढ़ा देता है उसके बाद कोई कुछ भी बोले. आप लोग ने अगर टॉस नोटिस किया हो आज, रवि शास्त्री जैसे चालू हुआ, इट्स द बिगेस्ट कोलोसियम, रोहित शर्मा की हंसी निकल गई 2 बार. इन द ब्लू कॉर्नर रोहित शर्मा, इन द येलो कॉर्नर पैट कमिंस, और रोहित शर्मा लिटरली हंस रहा था और वो रोक रहा था अपनी हंसी. तो बोल रहा था क्या रवि भाई क्या कर रहे हो आप यार, ये क्या अरे रवि भाई बड़ा फनी था. हम लोग देख रहे थे और हम लोग कह रहे हैं यार कि हंस रहा है अभी कैप्टन टॉस पे आया. बट हाँ, आई थिंक वो बिकॉज इट्स सच अ ब्रेव डिसीजन ना कहीं थोड़ा सा झिझक तो आती होगी ना लेने में. I suppose मतलब मेरे को. Yeah, I think at the end of the there was an interview. More or less people criticized him. Yeah, all over the internet, यार. Even the commentators, मतलब हम सब सोच रहे थे. But अरे इसने राजदीप सर से हाँ करेक्ट. अरे हाँ मतलब I thought a lot of these experts पंडित type लोग were questioning the okay. But the thing is that you have to. I mean, I watched all of GT's home games this year at Ahmedabad. I mean, I've seen what's happened in the World Cup. Chasing is always easy, yeah. Yeah, like, and New Zealand won. New Zealand won it, like won their first game in 40 losing overs. Just one wicket. Yeah, losing one wicket, and then India chased down against Pakistan. Yeah. I mean, the only exception was कि जब ऑस्ट्रेलिया ने वो खेला उसको इंग्लैंड के खिलाफ, those minnows, they sent those minnows back. तो मतलब England's bowling gave away 25 extra runs. England's batting couldn't make it. Right. But वो भी
यार एक चीज ये भी है, इंडिया भी जब स्टार्टिंग में, अगर आप लोग को याद हो, फर्स्ट हाफ में सारे मैचेस में हम लोग चेज ही कर रहे थे, तो अब वो तो सबका ही वही रहता है कि टारगेट पता हो तो जा सकते हो उस हिसाब से, यू नो, नो वन वांट्स आई टू बी थिंक एडवेंचरस ये दीस एक डेज। मेंटालिटी है ना जो हमारा, आई थिंक वी आल्सो शेयर इट, कि हम कहते हैं कि फाइनल में वी शुड बैट फर्स्ट, बिग मैच प्रेशर एंड ऑल दैट। बट इसमें भी मैं थोड़ा स्टैट्स डिग अप कर रहा था कि पिछले एवर सिंस द पावर प्ले रूल्स हैव चेंज्ड एंड यू नो वन न्यू बॉल एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, sorry, 2 new balls and all that kind of stuff, half the big tournament finals have been won chasing and half of them have been won batting first. तो it's not कि पहले जो होता था कि you bat first and 90% of the time you win, बहुत कुछ कम exceptions थे। 96 में श्रीलंका ने चेस करके जीता था। In the एक last सेकंड राज, 10-15 years, yeah, हाँ, हाँ कुछ आप एक बार वापस से ट्राई कर लोगे क्या? वी हैवंट रिसीव्ड, आई थिंक। क्या इंस्टा पे भी डाल सकते हो? हाँ, info@oaktreecreative.in. Nirav, that's the ID, right? Yeah, I just put it on the message. Okay. वापस एक बार भेज दो प्लीज। हाँ, भेज दिया। यस, भेज दीजिए Yes, प्लीज। Raj Pandit. यार आज सॉरी, नहीं यार मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। But आप बोल रहे थे कि मेरा थोड़ा पहले रोहित शर्मा मोमेंट हो गया। I mean, see, it's one of those things. Yeah, at the end of the day, India lost the toss. We couldn't do anything about it. Great toss to win for Pat Cummins, and we didn't bat well enough. They bowled very well, and it happens. Champion team के खिलाफ तुम फाइनल खेल रहे हो, कभी-कभी नहीं होता यार। आई एम ग्लैड यू सेड द वर्ड चैंपियन, बिकॉज पिछले मैच में इंडिया के बेकहम आए थे और आज ओक्ट्री डगआउट में इंडिया के लास्ट मैच के लिए जिदान खुद आए हैं कमेंट करने। जिदान का कमेंट दिखा दो प्लीज। लेकिन जिदान सिंधी कब से बन गए? आपका नाम जिदान से जिदानी, अब तो जिदान लालवानी। अच्छा वो आज ये तेरे बुरे जोक्स भी आज नहीं। अरे मेरा नाम है फुटबॉल नहीं कर सकते थोड़ा सा आज तो थोड़ा लोगों को let's give them so some he is saying even if we have batted second, Kali pressure would have been or more on us. यार I don't know, मतलब I always feel that if you are the home team, फिर आप अगर फील्ड पे उतरोगे तो आपको कलेक्टिव सपोर्ट मिलेगा, you know, and that allows you to do well. तो यार मेरे को क्राउड का थोड़ा अजीब लगा यार, क्राउड का थोड़ा अजीब लगा। आज पिच और बॉल हमें नहीं मिली थी गाइस। हाँ, सैडली नहीं मिली थी। ऑस्ट्रेलिया ने बॉल का वो ले लिया और पिच भी उन्होंने डॉक्टर किया। हाँ, हमें भेजी थी लेकिन एड्रेस गलत लिख दिया यार, एड्रेस गलत लिख दिया। लेजर शो नहीं हुआ ना, इसलिए वो चेंज नहीं कर पाए पिच। हाँ, शुभम की रिक्वेस्ट है राज भाई आज जोक्स ना मारना। हाँ, आई थिंक वही तो सहारा है शुभम, वही तो सहारा है। ओके यार, आई थिंक ठीक है शुभम, क्योंकि क्या डाइवर्ट हो जाएगा ना दुख थोड़ा। अभी क्या दुख बहुत भारी लग रहा है। हाँ, अब मेरी तरफ एटलीस्ट थोड़ा अच्छा डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, मेरी तरफ दुख और गुस्सा टारगेट कर लो। हाँ, या नहीं रवि, I wanted to go through the whole match and then figure out what was the turning point, but it obviously was in our batting only, right? We didn't put enough runs, correct? Is that a fair thing, or did it change in the second half? Second half एक moment था which I think I'll come to, but batting I think was the okay. Definite. So one by one, guys, what was the turning point therefore? Raj, you go first. Raj, I think it was the Shreyas Iyer. No. It was the Virat Kohli wicket probably, because I still felt that KL and VK when they were batting वो काफी slow थे and they were a little scared because बाद में सिर्फ सूर्या है, but लग रहा था कि शायद at over number 35 or something they'll try and explode, but the fact that Virat got out a little before that, so whenever you felt कि अभी explode करने वाले हैं, one wicket fell, and which is why the momentum never really took off. Cummins got 2 of his wildest dreams come true in that one ball actually. मतलब वर्ल्ड कप फाइनल में विराट कोहली का विकेट लेना और एक साथ you know 1.25 लोगों का मुंह बंद करना, which was by the way, 1.25 नहीं था, 132,000 is the capacity. The match was sold out, but officially they are saying the official count is 92,400 something. Security and security, वो 40,000 लोग सिक्योरिटी गार्ड्स थे, मतलब सिक्योरिटी आती है हर बंदे के साथ। Oh wow, okay. पीएम आप कह रहे हो? अच्छा, तो रिपोर्ट नहीं कर सकते ना कि वो आए, और कौन किस को नहीं रिपोर्ट कर सकते कि ये देख रहे थे मैच। इतने सिक्योरिटी गार्ड्स थे, but शिशिर, आपकी राय, when did you think the game changed? यार मुझे 2 जगह लगा, मतलब हाँ, कोहली का विकेट ऑब्वियसली वाज द टर्निंग पॉइंट इन द सेंस कि फिर उसके बाद सूर्या आ गया और फिर वो
उसको प्रैक्टिस नहीं थी, सॉरी जडेजा आ गया था तो वो, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा था जो डिसमिसल रोहित शर्मा का हुआ ना, मैच वहां से पलटा है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है ऐसा. It's just that the audacity of that catch and the moment that it happened, because at that point it seemed like India are going for 330, 340. लेकिन जब वो विकेट गिरा मुझे लगता है कि वहां मैच पूरा बदल गया. मतलब इन लोग दे वेंट इन डिसबिलीफ कि ये क्या हो गया. और उसके बाद जब श्रेयस का विकेट गिरा तो मुझे याद है कोहली के टर्निंग पॉइंट एक होता है. हाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि बिकॉज ऑलरेडी समरी दे रहा है, मैच समरी दे रहा है, विकेट मैं समरी. मैच समरी नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ कि रोहित के विकेट से एकदम से झटका लगा था. मुझे लगा वो शॉक में चले गए थे हम लोग कुछ टाइम के लिए, क्योंकि श्रेयस के विकेट के बाद भी मैंने कोहली की शक्ल देखी थी एंड वो 2-3 बार ऐसे ऐसे कर रहा था, व्हिच वाज लाइक शोल्डर्स आर ड्रॉपिंग इन अ वे मेंटली. तो मुझे लगता है कि जस्ट रोहित का वो विकेट, वो सेलिब्रेशंस, वो आई डोंट नो, मेरे को जेन्युइनली लगा दैट वाज बिकॉज़ 79 फॉर आई थिंक 80 फॉर 2 थे, 2-3 बॉल बची थी पावर प्ले की, एक छक्का एक चौका ऑलरेडी जा चुका था. तो सबको बस वही लग रहा था रोहित ने कैसे कर दिया, अरे जरूरत थी क्या, ये थी क्या, वो थी क्या. और वो ऑफ कोर्स द कैच जो 4 बार उन्होंने 5 बार एटलीस्ट दिखाया है. तो मेरे को लगता है वहीं से मूड, वो एक होता है ना मूड ऑफ हो जाता है. आई थिंक तो बेसिकली तू बोल रहा है हुआ. तो ट्रेविस टर्न द मैच ऑन इट्स हेड अगेन जो सेमीफाइनल में किया So वापस. Ajinkya, I'm continuing to ignore Raj on these jokes because we have now paid the price. and एक before That is- I that's my coping finish, एक और mechanism, पॉइंट guys. मुझे लगा था कि रोहित इज अ ब्रिलियंट कैप्टन. मुझे आज लग रहा था थोड़ा सा हम एक स्लिप कभी कभी शॉर्ट लग रही थी. हाँ वो मुझे लगा. I agree with you. I agree. Especially 3 Throughout. विकेट गए थे उसके बाद. Correct. I agree. हाँ उसके बाद, और इवन कई बार एक ही स्लिप थी, 2 होनी चाहिए थी, जबकि पहले 10 ओवर ही चल रहे थे. तो वहां पे मुझे लगता है कि बिकॉज रन्स कम थे तो वो डर गए या कुछ हुआ, तो दैट आल्सो प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया's hands. I agree with Shubham. So there is a so I'm asking you Ajinkya, what, like, Rai kya hai, matlab was it Rohit's wicket and the catch by Travis Head, was it Virat, was it sending Jadeja before Surya, or was it the appointment of Richard Kettlebrook 3 days ahead as a umpire for the final? That's the main point. That's the main point. Exactly. That's where we lost it. That's where we lost. That's where What we is- lost. No, but to be very frank, Shreyas, What's Richard's nickname? Okay, no, jokes. yeah, but to Yeah. be very honest, रोहित और कोहली के विकेट से जितना फर्क नहीं पड़ा उतना फर्क मेरे हिसाब से अय्यर के विकेट से पड़ा, क्योंकि उसके विकेट के बाद सारा मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के पास चला गया. वो फील्ड बेटर करने लग गए, मतलब वो ब्रिलियंट साइड है ही, बट उसके बाद जो एनर्जी उनमें आई है कि मतलब दे वर थ्रोइंग देमसेल्फ. जैसे अगर हमारे BWC के एपिसोड में भी बोला, आई डोंट रिमेंबर किसने, कि वी थ्रोन आवरसेल्फ टू द विक्ट्री इन 2013 चैंपियंस ट्रॉफी. विराट ने बोला है. या सो दे वर थ्रोइंग देमसेल्फ ऑन द बॉल, ऑन द बैट, स्लेजिंग चल रही थी. जो पुराना ऑस्ट्रेलिया है, 2003 वाला ऑस्ट्रेलिया, 2007 वाला ऑस्ट्रेलिया, वो 2013 का जो हमारा ऑफसाइड फील्डिंग था ना कभी ऐसा मैंने इंडिया में, मतलब 30-35-40 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ ना, मैंने ऐसा देखा है ना. मतलब मोहम्मद कैफ नहीं था, युवराज सिंह, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रैना, सुरेश रैना, ये 5 होते थे ऑफसाइड में, बॉल जाती नहीं थी पार. Right. तो बेस्ट ऑफ द लॉट. It was just one amazing, and Shikhar Dhawan also was there in 2013 championship. These guys were रोहित शर्मा just, भी एक टाइम पे बहुत रोहित शर्मा एजाइल था. नहीं, मतलब वो इस लेवल का नहीं रहता था. नहीं, वो शॉर्ट मिड विकेट, उसका रोहित शर्मा का शॉर्ट मिड विकेट. ये ऑफसाइड की फील्ड अभी करता है, मिड ऑफ पे करता है. हां, बट ठीक है, रो रहा था यार आज यार. ठीक है, बहुत लोग रो यार. हम भी Talking about Australia, guys, talking about Australia, Manas Labuschagne was almost not in the World Cup side. World Cup 14 में. I'll come to that. Neither was Travis Head, but so let's go to the Australia batting then. No, but it's fielding. I'm saying Manas Labuschagne saves easily 20 runs every match. ये सिर्फ आज की बात नहीं है. Every match is done. 3 highest run outs in the World Cup this campaign. 3 run out किया उसने डायरेक्टली. वो भी स्टार्ट किसने? Labuschagne ने. Okay, so lost my chain of thought. Sorry. India's opening assault on the Australia batting. पहले 2 ओवर तो थोड़ा स्कैरी लग रहा था. कोई कंट्रोल नहीं था. 22 जा रहे हैं, वाइड्स जा रहे हैं. 15 मैंने जब पहला ओवर 15 देखा ना, 15 फिर 2003 याद आ गया. हां, 15 मतलब लिटरली वो आ गया. फर्स्ट ओवर, एग्जैक्टली दैट. या Very tough. So somehow we controlled it back. छठे 7वें ओवर में मेडन भी था.
and by the end of it there was like what 47 for 3, but like shouldn't it have been 20 for 3, right? That's my question, like because we gave away so many पहला extra... तो वो तो पहला बॉल ही मेरे को समझ नहीं आया कि विराट कोहली why मतलब how did he miss? मतलब why तो बोलना गलत है, but how they did were he far not they were miss? far away. There was a big gap between first and second slip. Yeah, and it was Virat's catch more than Shubman's. तो वो बिल्कुल उसके बगल से निकला, मतलब ऐसे तो वो बिल्कुल ही मूव नहीं किया. आई थिंक वो ब्रेन फेड हो गया, क्या हुआ पता नहीं. तो वहां गुड थिंग वाज हाथ ऐसे थे ना उसके पीछे, ऐसे थे ना उसके हाथ, पब्लिक को उत्साह कर रहा था. केएल राहुल, जिसकी बात हमने पिछली बार की कि नोटिस में नहीं आते हैं, आज नोटिस में आए, है ना? आपको लगा क्या कि ही वाज सब पार, मतलब और कि हमारे स्टैंडर्ड्स इतने ऊपर हो गए? उसने स्टैंडर्ड सेट किया क्योंकि काफी वाइज पैर के बीच में से बॉल गई है यार. बॉल भी बहुत ज्यादा मूव कर रही थी ना आज तो, और वो मतलब पिछली बार being very fair to him, he is not a traditional wicket keeper. But he has proven himself. अचकन पहन के नहीं आता है. He has proven himself. ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? अचकन पहन के आएगा क्या कीपिंग कर? नहीं, अरे ड्रेसिंग की बात नहीं कर रहा, मतलब उसका फर्स्ट डिसिप्लिन नहीं है कीपिंग, बेसिकली, इफ आई पुट इट दिस वे, राइट? या धोनी वगैरह, पंत, कार्तिक, ये लोग कीपर्स हैं पहले, फिर बैटिंग इनका बोनस है. बट ऑफ कोर्स कई लोगों का बैटिंग इतना अच्छा हो जाता है कि इट बिकम्स ऑलमोस्ट एज इक्वल और एज गुड एज द फर्स्ट. केएल राहुल का वो था, और आज कुछ ज्यादा ही, मतलब ऑफ कोर्स अब वो इतने टफ कंडीशंस में उसने पहले कीपिंग की है कि नहीं, टफ फॉर द कीपर्स, आई मीन, वेयर द बॉल इज जस्ट मूविंग अराउंड सो मच, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन, इनकंसिस्टेंसी. तो वहां पे आई थिंक, और प्लस अगर बॉल लेग साइड स्प्रे ज्यादा करती है तो इट्स ऑलवेज मोर डिफिकल्ट, राइट? लेग साइड मूव करना, keeps going further, even though he has taken some great catches, but this type of movement I think उसके लिए ready नहीं था शायद से. So but then there's the bowlers. Okay, so how good was the decision of putting Shami as the bowling with the new ball rather than? Very bad. मतलब why did we change? भाई पहली बॉल पे विकेट ले लिया इफेक्टिवली, पहली बात तो नहीं, but that's fine. वो तो वैसे ले लेता, तो कभी भी आ रहा था पहली बॉल, वो पहली बॉल भी ले रहा था. हमें वो चौथा विकेट चाहिए था. आई थिंक वहां पे प्रेशर किक ही नहीं किया है मेरे हिसाब से. जो आधे घंटे का गैप था चेंज ओवर ऑफ द इनिंग्स, वहां पे कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा. मतलब वी आर नॉट एक्सपर्ट, अगेन आई एम नॉट पर्टिकुलरली, आई एम नॉट द एक्सपर्ट. आई थिंक उनके दिमाग में वही था कि वार्नर है स्ट्रगल्ड अगेंस्ट शामी, गो फॉर द किल. उनके दिमाग में यही था, गो फॉर द किल, स्ट्रेट अप तुम्हारे स्ट्राइक बॉलर पे लाओ, विकेट ले लो. बट वो उल्टा फंस गया सारा का सारा. बाद में हमारे पास बचा ही नहीं ओवर कि हम स्ट्राइक बॉलर से कराए किसी को. So that's what I see. So now I think also because Shami is not used to the new ball. I mean, I won't say he's still a great bowler and he's done it before, but in this World Cup he's not done it. So extra swing mil raha tha, and that was leading to those wides and all also. So as you said, it could have been 40 for 2 rather than 40 for 3 rather than, you know, jitna eventually score ho gaya in that 20 for 3 instead of 20 for 3 instead of 47 for whatever. Yeah. Okay, so now I'm going to address the partnership, which both wicket का हमारा भी था, उनका भी था. Yeah. But approach. उनका मैच में नहीं था. Travis Head, Labuschagne. Let's talk about them. Shishir, you want to tell us your thoughts? यार क्या बोलूं, मतलब it takes a lot of, I think, mentality वाला गेम है सारा. If you look at Travis Head, injured थे टूर्नामेंट, लाइक दोनों बंदों की जगह कंफर्म नहीं थी, काइंड ऑफ, फॉर डिफरेंट रीजन. Labuschagne I don't think was in the first 18 का shortlist. नहीं, हाँ, he was, then I think एक बंदा ये हेड इंजर हुआ, किसी का कंकशन रिप्लेसमेंट ही बन गया है. Travis Head का कंकशन रिप्लेसमेंट. हाँ, Travis Head फिर एक साउथ अफ्रीका सीरीज में एक 80 मारा, फिर 100 मारा, या स्मिथ का था शायद. नहीं, स्मिथ का, इस बार ट्रेविस हेड का था. ठीक है, किसी का तो था. ट्रेविस हेड का रिप्लेसमेंट आया और स्मिथ का एज अ कंकशन सब्स्टिट्यूट. नहीं, स्मिथ का आया. हाँ, आई थिंक कुछ हुआ था कि किसी के रिप्लेसमेंट पे वो स्क्वाड में पहले आया और फिर किसी को कंकशन हुआ मैच में, सो वहां पे वो बैटिंग करने आया. मोस्ट लाइकली स्मिथ. वो आप इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है हम लोग एशेज से कंफ्यूज हो रहे हैं जो 2019 की हुई थी. वहां पे भी ऐसे ही कुछ हुआ. मुझे लगा कि मैंने मैच देखा था यार. दिस वाज द सेकंड मैच, साउथ अफ्रीका वर्सेस सेकंड या थर्ड मैच. मुझे लगा कि ट्रेविस हेड को सर पे लगी थी, फिर वो चला गया. उसके पहले मैच में ट्रेविस हेड को सर पे लगा, he left, Marnus Labuschagne came as replacement. Correct. He came as नहीं यार, he came as a concussion. तुरंत दूसरे मैच में स्मिथ कंकशन हुआ
and Labuschagne came to bat. Those are the sequence. चलो we'll still मतलब चेक करेंगे, अगर तू पढ़ के बोल रहा है तो बेस्ट है. नहीं, बट नहीं, या आई मीन उसके बाद फिर उसके यार एक तो वो है कि सॉरी ये अभी 2023 में हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से ही. तो वहाँ पे मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड ही था. तो आई थिंक वो भी एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आता होगा कि यार मैंने इन लोगों के यही बॉलिंग अटैक था मोटा मोटी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक आता होगा कि एक सबकॉन्शियसली रहता है दिमाग में कि आई हैव हैड एन अपर हैंड ओवर दीस पीपल, बिकॉज़ ट्रेविस वाज नॉट देयर व्हेन इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द ओपनिंग गेम ऑफ द वर्ल्ड कप. सो एक ये चीज प्लस उसका गेम जिस तरह का है, हाँ, जिस तरह का उसका गेम है, बिकॉज ही वाज स्टार्ट पहले ओवर में उसने 2 चौके मारे थे बुमराह को लास्ट 2 बॉलों पे, तो वहीं से वो उसका फ्लो में तो था ही. और एक पॉइंट पे ही वाज लाइक 25 में 15 था, बट ही बाइडेड हिज टाइम. 2 विकेट गिरते ही वो थोड़ा आराम, मतलब उसने मेडन खेला. एंड ही हैड अ गुड पार्टनर इन लबुशेन. मेरे को हमेशा यही लगता है, मतलब मैं आई थिंक रात से ही पहले बात कर रहा था कि 78 या 79 का स्ट्राइक रेट था लबुशेन का पहले इन द फर्स्ट 7-8 मैचेस, बट वो टिका रहता है. मतलब ही इज नॉट कमेंट्री में भी किसी ने मेंशन किया कि आउट ऑफ ऑल द इनिंग्स 2 इनिंग्स ऐसी होंगी जो कभी मेंशन नहीं होगी. इट्स वन पैट कमिंस 12 रन्स एंड लबुशेन्स इनिंग. I think it was Harsha, if I'm not wrong, but don't quote me on this. But कोई तो था जिसने मेंशन किया था. So वो I think दोनों perfectly complement कर रहे थे. और फिर एक पॉइंट के बाद ना जब वो 130-140 तक पहुंच गए थे, वो 60-70 रन की पार्टनरशिप हुई, तब मेरे ख्याल से उनको भी लग गया था कि अब गेम, क्योंकि कमेंटेटर्स भी कह रहे थे ये 140 जैसे पहुंचेंगे. अंपायर्स कॉल ने भी बचाया. एक 11वें ओवर में जडेजा आ गया, 12वें ओवर में कुलदीप आ गया. एंड वहां से कोई टर्न नहीं मिला, कोई बाउंस नहीं मिला, कुछ नहीं था. मतलब गुड लेंथ पे डाल के उनको कुछ ठीक है, मतलब बीच में they were also playing it off safely. तो did our spinners do enough? Like कुछ but the good thing is कि even if they were trying to play safely ना, नीरव वो एक odd boundary निकाल रहे थे कहीं ना कहीं से. वो कंट्रोल एग्रेशन था, similar to what जब बुमराह और शामी सेकंड स्पेल के लिए वापस आए थे 20-22 ओवर के बाद, there was a period of about 7-8 overs जहां तक मेरे ख्याल से हर एक ओवर की पहली बॉल पे चौका पड़ा. यस हर एक बॉल पे पहली बॉल पे चौका पड़ रहा था. तो फिर जब वो 141 जैसे ही क्रॉस हुआ ना, तब वो डबल डिजिट्स जैसे आ जाते हैं और आपके विकेट नहीं निकल रहे, तो फिर कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गया. सब बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, हेड ड्रॉप. आप फिर मिरेकल का ही होप करते हो कि कहीं से 1-2 विकेट निकले और फिर वापस से खिड़की खुले कुछ. If your head drops, फिर भाई मतलब हेड को आउट कैसे करोगे यार. तो make it worse, Raj, make it worse so that I am more traumatized by these than the loss. तो बस वो सब हुआ है. किसी ने कमेंट किया था सौम्यदीप ने, ये I think Kohli should have bowled. I was अच्छा ये वाला नहीं, sorry, I was going to go with his this thing. I think somehow ना, मतलब Shami and Siraj at least don't have that skill of वेरिएशन. इतना ज्यादा नहीं है, वो आज निकल गया. शमी ट्राइड टुडे, आज उसने 2-3 स्लोअर बॉल डाले बट वो सही नहीं गिरे बिल्कुल भी. Yeah, this is a very Harshal Patel pitch ना, मतलब this needed people to bowl that slower ball which is जो halfway through जा रहा है, फंस जाएगा. हाँ. Are you saying it's a season 8 episode 5 of BWC pitch, season 7 episode 5 of BWC kind of? Not a shameless plug. But who somebody on Twitter, some former cricketer said it looked like a day 10 of a test match. मतलब वैसा pitch. तो मुझे pitch तो बहुत अजीब लगा. But their bowlers bowled way better. संजय मांजरेकर ने कंपैरिजन भी कराया था जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था अराउंड 35 ओवर के, तो वो बोला कि बैटिंग has become so easy now. It has, but their bowlers bowled way better and our bowlers didn't. That also is there, and again that happens. He also due factor came in, no, in the second inning. Yeah, a lot. पहले grip कर रही थी ball. थोड़ा तेज तो आ रही थी. मतलब so do you think, मतलब became a lot easier to bat. Is it an excuse to say that we were beaten by the conditions as much as by a charged up? We were beaten by the better team. ठीक है. No, it's like the better team on the day. We were beaten by the better team on the day, and the conditions also helped. But at the same time, वो conditions के वजह से we should have scored 30-40 more. Also अगर toss में रोहित शर्मा ने बोला है कि भाई मुझे बैटिंग ही करनी थी पहले,
वो मेरे को irrespective वो एक जीत रहा टैक्टिकल वो लग रहा था, हाँ, वो मैंने मुझे भी भी अभी पढ़ा भी वही लग था रहा है कि हर बार वो कि उल्टा ही बोलता है हर I बार would have यही done बोलता है this जब भी only. टॉस हारता है, हाँ, नहीं मैं तो उल्टा चाह रहा था, जिससे कि I कभी would have done ऑपोजिशन को this ये ना only. लगे कि वो तुमने रोहित कुछ की जीत रोहित लिया की आदत मुझसे। है, वो रोहित की आदत है. It's like कि no, I'm happy doing whatever you want me to do. Okay, But so Raj, vital yeah. question. Yeah. In the last 24 months, Hmm. the same set of 7 or 8 people, along with another 3-4 people, Yeah. have won the World Cup in all 3 formats. Ooh, yeah, the T20 जो 21 वाला 21 World में, Cup था ये. करेक्ट, Yeah, 21 में, yeah, मतलब 24 महीने हुए, ठीक है yeah. ना, नवंबर में जीते वो इस साल वर्ल्ड हाँ, सो correct, मतलब correct. दो के वो करंट डिफेंडिंग चैंपियन है, एक वो Correct. मिनोज को हार चुके हैं. So are you But saying this is the best is this Australian the side? greatest cricket team Australian ever? side more than Steve ऑस्ट्रेलियन was को छोड़ो. Aussies, Yes. more than Clive Lloyd or Steve No. was Aussies or Ricky Ponting's Aussies. No, I'll tell you why. Ricky Ponting's बताना. Aussies, except for a हाँ. brief period in 2000 and मतलब जब भी था, when the cricket test ranking started to come and top team started to come, हाँ. and And when they World came to Cup. India and won, when they came to India and Sri Yes. Lanka and won, correct? Yeah. Apart from that, they were actually, whenever they were one-day champions, they were never test ranked team, because 2005 onwards it was either England or India. Yeah. Or New Zealand. मैं आपको So बताता हूँ. they were never held two things, but like for brief while शायद हुए होंगे. Yeah. But never T20 जब जीते थे तब तक वर्ल्ड कप हार चुके थे. तो they were never a defending champion or having won like in such a small period of time. उस टाइम में चैंपियनशिप नहीं था, टेस्ट चैंपियनशिप, but at least ranking था. See, I don't know what best team, but I'll say this one thing about Australia. Australia has often defeated the best team of the World Cup. 99, South Africa was the best team. It was Australia that stopped them. 2015, New Zealand was the best team. It was Australia who eventually won that final. India was the best team until this final happened. And Australia again defeated the best team. So they know how to come up on the big day when it's required. And वो मतलब पहले से करते आ रहे हैं, अभी भी करते आ रहे हैं. I still feel this team has flaws, like their middle order is not as inspiring and stuff like that. Lekin they were up there when it mattered most. Yeah. Which middle order are you talking about? I mean the Aussie middle order. I'm saying it has flaws. Which is where? मतलब you're saying what is the middle order? Do you count it starting with Marsh or do you count it starting with Fourth Smith number or से होता है. Labuschagne? Fourth number से होता है. I'm saying Smith and Labuschagne in the form that they're in. Yeah. तो Smith, Labuschagne. आप एक बात बताओ मुझे, सच बताओ. स्मिथ का स्टैचू जब से बन गया. मिडिल ऑर्डर कहाँ पे खत्म होता है? मिडिल ऑर्डर कहाँ पे खत्म होता है? 7 पे. Okay, तो इंग्लिश ने पिछला मैच more or less जिताया था. 28 was a great correct innings under the circumstances. No, I'm just saying it's not a fearsome side. It doesn't cover every base, but they know when to win. Let me remind you about a certain match which happened 2 weeks ago, in which they needed 200 runs to win. अरे यार. ठीक है ना? So let me remind you about what that ऐसा भी हुआ क्या? ऐसा भी हुआ क्या? So कौन सा मैच है? मुझे एक बात बताओ, मिस्टर ग्लेन मैक्सवेल करके नाम है उसका. वो मिडिल ऑर्डर नहीं था, वो ऑर्डर था. That was one man like walking through कि मैं वो ऐसा था कि सनी पाजी हैंडपंप लेके पहुंच गए थे मैदान में, वो वैसा था. So एक बात बताओ मुझे, लेकिन सनी पाजी I thought of Gavaskar, but okay. I'll just go on Glenn Maxwell. I've told your thought, Shishir. Yeah. So Ravi Shastri also mentioned this, right? And I think Ravi Shastri and Ricky Ponting were on commentary. जब ये बात उठी थी ग्लेन मैक्सवेल की कि he's next in, but बात वो नहीं थी, बात थी कि जो वो मैच वो जीते, है ना, वो अफगानिस्तान के साथ, वहां से एक बिलीफ आया. So they talk about the precedence कि ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आता है एक टूर्नामेंट में जब आपको लगता है कि अब वो कुछ हरा नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले उनके पास इंजरी इश्यूज थे. मतलब 5 मैच ट्रेविस हेड नहीं खेले, ग्लेन मैक्सवेल खुद इंजर्ड हुए थे, गोल्फ खेलने गए थे, 2-3 और इंजरीज हुई थी. स्मिथ को भी कुछ इशू हुआ था वर्टिगो का, काफी इंजरी इश्यूज थे, प्लस वो गया था घर पे. स्मिथ तो अभी भी थेरेपी ले रहा है स्टैचू देखने के बाद. तो that one innings like that, much like Kapil Dev's innings of 175, spurs a team on. फिर उसके बाद वो टीम मतलब अगर एक आध मैच हार भी जाए चलो, but there is a belief कि हम बेस्ट है, हमें कोई नहीं हरा सकता, हम किसी भी सिचुएशन में उभर के आ सकते हैं. हाँ, correct. That's so true. Yeah, that's so true. Yeah. So I think Shishir, you had mentioned that this is not the first time. These are not the only 2 incidents. एक बार और भी हुआ है. Yeah.
मैं थोड़ा पीछे ले चलते हैं। सबसे पहले तो कपिल देव की जो बात की आपने, रवि शास्त्री ने ही कमेंट्री में किया था जिक्र। हाँ, तो अपने ऑडियंस को बता दो कि क्या क्या मतलब क्या था, सर्कमस्टेंसेस क्या थे वो से सबको, जिसने 83 फिल्म ना देखी हो या मेरी उम्र का ना हो जो है तो बता दो। तो कपिल देव का ऐसा था सीन कि 1983 में थे हम लोग तब रिलेटिवली यंगर टीम कह सकता हूँ मैं, मिनो वर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। मिनो थे तो हमने मेरे ख्याल से थे कहीं ना कहीं 18-20 टोटल वनडेज खेले थे तब तक टोटल। हाँ, मतलब तो हम वी वर मच मोर मिनोअर देन नेपाल, मतलब इफ यू लुक एट इन वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट 10 साल तक तब वो क्या कहते हैं 2 वर्ल्ड कप हो चुके थे 10 साल से वनडे फॉर्मेट एक भी वर्ल्ड कप मैच नहीं जीता था शायद। हमने एक पहले जीता दो था, मैच वर्ल्ड कप एक जीता था हमने ईस्ट अफ्रीका के अगेंस्ट, इफ आई रिमेंबर ईस्ट अफ्रीका के अगेंस्ट, करेक्ट। एंड हम मतलब टोटल मिला के इस 10 साल में हम सीरियसली लेते नहीं थे बेसिकली। हाँ, तो हमने मुश्किल से इफ आई ट्राई एंड गेट द नंबर्स राइट, बट आई थिंक कुछ 18-20 खेले थे, उसमें से 5-6 टोटल में जीते थे टोटल। तो ये हमारा सिचुएशन था गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप। तो अब इस केस में ये हुआ था कि ये टर्नब्रिज वेल्स करके एक मैदान था, वहां पे मैच था इंडिया और जिम्बाब्वे का। एंड हुआ ये कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप पहले मैं सुना देता हूँ आपको। सुनील गावस्कर, क्रिस श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल, यशपाल शर्मा, बड़े बड़े नाम है ना, जितों को आज की जनरेशन भी काफी सुन चुकी है। ये स्कोर हमारे फॉल ऑफ विकेट सब बताता हूँ। पहला विकेट गिरा 0 पे, दूसरा विकेट गिरा 6 पे, तीसरा गिरा 6 पे, चौथा गिरा 9 पे। इस टाइम पे ये कपिल देव साहब जो थे वो स्लेटेड टू कम इन एट आई थिंक नंबर 7। ही वाज टेकिंग अ शार और वेंट इनसाइड टू टेक अ शार। साहब उन लगाए सबको जनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको नॉक करता है कोई कि भाई आ जाओ पाजी, 4 विकेट गिर गए। वो कहता है नहाने नहीं दे रहे यार तुम लोग यार। और जब तक वो मतलब ही कुड गैदर हिमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, 17 रन पे 5 विकेट गिरे। तो वहां से उन्होंने पता नहीं क्या किया, उनको शायद गुस्सा आ गया कि मेरे को नहाते नहाते में निकाल दिया यार बाहर। सो ही वेंट ऑन अ रैम्पेज। 138 बॉल्स में उन्होंने इवेंचुअली 175 नॉट आउट की पारी खेली उस वक्त 1983 में। वो उस टाइम का हाईएस्ट स्कोर था। 16 चौके 6 छक्के। और सुनील गावस्कर ने हमारे शो ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में कहा था कि कुछ फिक्शनल है इसमें पिक्चर में, कुछ हाँ मैं ठीक है चलो कुछ है। Only correction, I think he came in at the fall of the 4th wicket. He came in at 9 for 4. He did 9 for 4. हाँ, but फिर 17 for 5 हो गए थे। बैठा था तो एक है ना मीम था, रणवीर सिंह स्टैंड्स में बैठा था तो अमित शाह जयशाह से कह रहे हैं कि अरे ये गलत कपिल देव को बुला लिया। But which is if Kapil Dev is not invited, that's the sad thing, yeah. But no, I've heard so much about this inning, so it's great, yeah. It's great that we are looking. Yeah, and this was not televised. नीरव उसका रीजन बताएंगे कि क्यों टेलीवाइज नहीं हो पाई थी ये नहीं? There is a myth which goes around which says that क्योंकि बीबीसी का कुछ स्ट्राइक हुआ था, ये बीबीसी रेडियो का स्ट्राइक जरूर था उस दिन, उससे कुछ ये नहीं था। बट द फैक्ट इज कि उस टाइम पे क्या होता था, जो मेरी रिसर्च ने बताया और मैंने काफी इस मामले में रिसर्च किया है, कि एक उस टाइम पे 2-2 3-3 मैचेस एक ही साथ होते थे। जैसे ग्रुप में अगर 4 टीमें थी तो दोनों मैच एक साथ ही होंगे। जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप में फाइनल मैच जैसे होता है ना, सेम स्टार्टिंग, तो यही होता था। तो इसी दिन मतलब दिस वाज प्लेड अबाउट 3-4 आवर्स अवे फ्रॉम लंदन। लंदन में ही 2 मैच थे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड खेल रहा था और 2 टीमें और खेलती है, मतलब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड वन अदर एंड मे बी श्रीलंका वर इन्वॉल्व्ड। तो ये चारों में 2 कॉम्बिनेशन, 2 अलग अलग मैचेस उसी दिन चल रहे थे। उस 1983 यार 40 साल पहले की बात है, इतने कैमरा क्रू नहीं घूमते थे, ठीक है ना। बहुत मतलब न्यूजीलैंड श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज सेम डे पे थे। एक्चुअली उस दिन 4 मैच थे। 4 मैच थे। अच्छा 4 थे, ओके 4 मैच थे, इंडिया जिम्बाब्वे। फिर ये इतने क्रूज नहीं होते, ये मान के चल, मतलब आज की डेट में आईपीएल में अगर 2 मैच हो जाएं तो बहुत, और उस वक्त लोगों के पास 4 स्क्रीन्स भी नहीं होते थे, तो हाउ वुड पीपल फॉलो इट? एक ही रहा है, तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चीज जा रहा था। तो बेसिकली दैट वाज द एक्चुअल ट्रूथ कि दिस वाज द लीस्ट, मतलब दिस वाज इंडिया एंड जिम्बाब्वे हु वर सपोज्ड टू फिनिश 3rd and 4th ऑफ देयर ग्रुप, राइट, एट बेस्ट। इस ग्रुप में देयर वाज वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। सो कोई किसी को कोई था नहीं कि कुछ नहीं होने वाला है इसमें, मतलब क्यों देखो ये। तो
तो क्यों जाए कोई, मतलब कौन जा रहा है, मतलब मतलब वो हमारी वैसा जर्नलिस्ट था कि भाई, अरे हमारे 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 17-18 जर्नलिस्ट इंडिया से गए थे, प्रिंट जर्नलिस्ट, उसमें से सिर्फ 2 यहाँ पे थे, बाकी सब वो वाले मैच कवर कर रहे थे। लंदन से बाकी कौन 3 बाहर मैच। निकलेगा, बाकी जो, हाँ मतलब हाँ बाकी Right. लंदन में थे, हाँ लंदन में और या मैनचेस्टर में एक मैच हुआ होगा शायद। Yeah. अम, Yeah. मैं तो बताता हूँ ना कहाँ ये हुआ था। देख लो कौन सा लंदन डेट को में था था, ये? एक मैनचेस्टर में था, ये 18 जून को हुआ था। एक मैनचेस्टर में था, एक डार्बी में था, एक लंदन में था। करेक्ट। तो ये 3 थे तो एंड ये तो किया था बेसिकली सारे कैमरा, न्यूजीलैंड मतलब ने। 2 कैमरा यूनिट्स होते हैं, 2 Hmm. ब्रॉडकास्ट हाँ यूनिट्स होते हैं, दोनों ऑक्यूपाइड थे, Yeah. और किसी पास फुर्सत या नहीं था कि मतलब अगर जर्नलिस्ट नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब अयाज मेनन इज वन कैमरा ऑफ द क्यों कैमरा ओनली जर्नलिस्ट हु रीच्ड हियर। Right. हाँ और काफी ऐसी चीजें मैंने सुनी है जो साइडलाइंस में जो हुआ है, मतलब हाँ बीसीसीआई का जो ऑफिशियल था, और एक जो मिस्टर वांकड़े थे, who was I हाँ think at that time the चेक करके बताओ, बट आई थिंक ही वाज मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, जिनके नाम पे स्टेडियम है। वो बाय चांस इंग्लैंड में पहुंचे हुए थे, और हाँ उनको किसी के साथ, मतलब वन ऑफ द इंडियन ऑफिशियल्स, मैनेजर या जो भी था, उनके साथ एक मीटिंग थी जो पिछले संडे को कैंसिल हो गई थी, तो उन्होंने बोला ड्राइव डाउन, तो वो ड्राइव डाउन करके गाड़ी बाहर खड़ी हुई है थ्रू आउट द, मतलब गाड़ी के पास दोनों का मीटिंग हुआ है, और Right. दे हैव आल्सो मिस्ड कपिल देव हाफ द इनिंग्स। Right. फिर पता चला कपिल या मार रहा है, तब अंदर गए। और ये जो श्रीकांत वाली जो कहानी है कि वो सिगरेट हाँ पीने गया था और पेड़ के पास खड़ा हुआ था और उसको वॉशरूम नहीं जाने दिया था, आई थिंक दिस वाज इन हाँ 83 आल्सो, राइट? ये ये काफी हद दिस तक वाज सही है, फॉर बिकॉज़ दिस मैच ओनली, फॉर दिस मैच ओनली। this one, he इसको basically went to हाँ pee behind a tree and he started to have a हाँ cigarette there, and they didn't let him come back. हाँ वहीं वहीं पे बैठ खड़ा हाँ। रहे, तो वो बाथरूम अच्छा एक करवाया उसको। क्वेश्चन पूछूं आप लोग से, मजेदार है। इस मैच में मतलब हाँ, तो मैं एक बार व्यूअर्स को बता देता हूँ, फिर 266 इवेंचुअली हम स्कोर कर पाए बिकॉज ऑफ दिस इनिंग्स ओनली, एंड द नेक्स्ट बेस्ट स्कोर वाज 24 बाय सैयद किरमानी, हु वाज द सेकंड लास्ट बैटर टू कम। तो नंबर आप 9। समझ लें उसकी सिचुएशन क्या थी और कितनी बड़ी पारी थी कि 175 का नेक्स्ट बेस्ट स्कोर है 24 फिर 22। तो ये था, और जिम्बाब्वे की तरफ से जो टॉप स्कोरर थे, he is the father of someone who was playing in the World Cup right now, in this World Who's Cup. playing for a Sam minnow Curran's team? dad. Was it Sam Curran's Yeah. dad? Sam and Tom, दोनों दोनों का बाप है वो। Hmm. हाँ Oh, सैम interesting. टॉम का दोनों का। हाँ, और आज के जो वो मैच रेफरी जिम्बाब्वे थे के लिए वो भी थे उस टीम में, एंडी पाइक्रॉफ्ट, जिसको आज रवि शास्त्री ने कहा था यू हैव अ जॉब टुडे, जैसे कि पहले वो काम कर ही नहीं रहे थे। तो हाँ, तो ये थी कहानी। और फिर यहाँ के बाद तो इंडिया ने बहुत ही कमाल का कमबैक किया, और उसके बाद आई थिंक उसके बाद अगला गेम भी 2 दिन बाद था, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीता था, कोइंसिडेंस और फिर है, उसके बाद मतलब इस मैच, हम हारे ही नहीं उस मैच के बाद। ये ग्लेन मैक्सवेल गेम में भी नेक्स्ट हाई स्कोर वाज 24, just a coincidence. या वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो या एक तो ये था। अब आप चलते हैं 9 साल आगे, 1992 वर्ल्ड कप, फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप इन कलर्ड क्लोथिंग। एंड इसकी स्टोरी मैंने सुनी थी, थोड़ी थोड़ी इनिंग्स देखी भी थी, बट कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था न्यूजीलैंड जो थी वो, सो मैं एक मिनट बता देता हूँ। 1992 वर्ल्ड कप में भी राउंड रॉबिन फॉर्मेट हुआ था, जो इस बार हुआ था कि सारी टीम सबसे खेलेगी और फिर टॉप 4 क्वालिफाई करेंगे सेमीज के लिए। वहां पे न्यूजीलैंड वाज द टॉप टीम उस वर्ल्ड कप में, और फोर्थ पे थी पाकिस्तान। इन दोनों का हुआ सेमीफाइनल आपस में, एंड पाकिस्तान चेस कर रहे थे सेकंड इनिंग्स में 263 का टारगेट, जो कि उस टाइम पे भी बड़ा अच्छा स्कोर माना जाता था, है ना। आज भी देख लिया ना, 240, पिछले मैच में भी 213 रन चेज हुए थे बड़ी मुश्किल से। तो पाकिस्तान वर 140 इन द 35th ओवर, और उनका तीसरा विकेट गिरा, और रिक्वायर्ड रन रेट उस टाइम पे था 7.68। अब आप समझ लें, आज के टाइम पे भी ऐसा रिक्वायर्ड रन रेट होता है तो हम बात करते हैं 350 रन, प्रेशर आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। एंड दिस इज फॉर कॉन्टेक्स्ट 11 years बिफोर T20 even was born. तो इंजमाम उल-हक जो टाइमिंग के मामले में रोहित शर्मा से कंपैरिजन जिनका, मतलब रोहित का जिनसे होता है, वो आए और उन्होंने 37 बॉल्स पे 60 रन मार दिए, अपने सीनियर पार्टनर जावेद मियांदाद का साथ निभाया, एंड इवेंचुअली 1-2 और विकेट गिरे आगे जाके, इंजमाम भी आउट हो गए, लेकिन वो उन्होंने इतना बढ़िया पारी खेली कि पाकिस्तान जीत गया 4 विकेट से। और फिर उसके बाद आई थिंक वो बिलीफ काइंड ऑफ रीस्टेट हो गया कि यार हम कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जो That's crazy, मैक्सवेल ने यार। करके दिखाया था।
Pacific strike rate in 1992. That's completely crazy. 1637. and 60 of 37, it's like 150 से ऊपर का strike rate ना, 160 almost. Insane. 150 160 फिर या अब आते हैं इसके बाद एक और इनिंग्स पे, आई एम सॉरी, एक और ऑजी इनिंग्स है. Oof, my favorite cricketer. Yeah. सो इनका निकनेम क्या है? नीरव? टुग्गा, टग्गू, टुग्गा, टगा टगा, टगा. Taga. तो इसका टगा ने अपनी ओके ठीक है. हाँ एनीवे, सो इसका मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा कि हमें सेमीफाइनल तो याद है कि भाई टाई हो गया था, दोनों टीम्स 213 पे थी, इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया आगे चली गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंच कैसे भाई सेमीफाइनल में, वो इस मैच की बदौलत था. ये मैच था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहे थे 272. अब जैसा राज ने मेंशन किया, साउथ अफ्रीका उस टूर्नामेंट में बेस्ट टीम, एंड ऑस्ट्रेलिया वर 48 for 3 इन द 12th ओवर, चेजिंग 272. तो वो आए पॉन्टिंग के साथ, ने पॉन्टिंग के साथ एक पार्टनरशिप की, और जब वो 56 पे, तो उन्होंने कैच, मतलब एक शॉट फ्लिक किया मिड विकेट पे हर्षल गिब्स, जो आई थिंक उस टाइम पे जॉन्टी रोड्स और पॉन्टिंग के साथ वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर थे. उन्होंने लिया और तुरंत सेलिब्रेट करने के चक्कर में वो कैच गिर पड़ा. लेकिन वो स्टीव बो का कॉन्फिडेंस वहां से हिला नहीं, और फिर उसके बाद उन्होंने 110 बॉलों में 120 रन की नाबाद पारी खेली, और इवेंचुअली साउथ अफ्रीका से वो मैच छीन लिया. और लेजेंड हैज इट दैट ही सेड टू हिम कि क्या कहते हैं, You just dropped the World Cup, son. You just dropped the World Cup, son. But later it was said कि it was a myth. In fact, press conference में एक रिपोर्टर ने स्टीव वॉ को पूछा था कि did he just drop the World Cup? And Steve Waugh said, hey, that's a good line. ये press conference अभी YouTube पे है कहीं ना कहीं. So he actually got the line from there. Yeah. Okay. फिर आते हैं इसके बाद 4 साल बाद अगेन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज दिस मैच एक्चुअली वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द कैंपेन. आई नो हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया अनबीटन थी, बहुत पोटेंशियल था, लेकिन मोमेंट्स ऐसे आते हैं ना जब थोड़ा वो जैसे 2 for 3 था हमारे इंडिया के लिए, तो हमें बिलीव चाहिए होता है. तो यहाँ पे क्या हुआ था कि देवर बैटिंग और उनके विकेट गिर गए बहुत सारे एक साथ. नंबर 7 के बाद जो विकेट गिरा, उसके बाद एंडी बिकल आए, और एंडी बिकल ने माइकल बेवन के साथ, ऑफ कोर्स द ओजी फिनिशर, उनके साथ मिलके पारी को संभाला, एंड ही हिमसेल्फ स्कोर्ड सम 60 odd runs. एंड ये उनकी पहली, जो आप राइट में इमेज देख रहे हैं, दिस वाज हिज फर्स्ट एवर 15 वनडेज इफ आई रिमेंबर करेक्टली. एंड यहाँ से इन्होंने 200 ऑड रन्स का टोटल किया, बहुत ज्यादा नहीं था. लेकिन फिर ब्रेट ली ने, आई थिंक वो इंस्पिरेशन आ जाती है ना जब मोमेंटम एंड में आता है, फर्स्ट इनिंग्स के एंड तक आ जाता है. ब्रेट ली ने फिर इवेंचुअली न्यूजीलैंड के 5 विकेट ले लिए, और यहाँ से इनका ये मैच बदला. और उसके एक मैच छोड़ के फिर से एक मैच हुआ इंग्लैंड के साथ, जहां पे फिर एंडी बिकल ने 7 विकेट लिए. और जब इंग्लैंड का वो टोटल चेस कर रहे थे 200 रन के आसपास का ही था वो भी, तो ऑस्ट्रेलिया वर I think 120 for 7 या 8. It is still the best figure in World Cups, na? That I'm not sure. But उधर भी उन्होंने बॉलिंग में तो 7 विकेट लिए ही एंडी बिकल ने, लेकिन उसके बाद बैटिंग में भी फिर से उन्होंने माइकल बेवन के साथ जुड़ के कुछ 30 रन या 25 रन बनाए, और माइकल बेवन ने eventually they got the team over the line with their contributions. So Andy Bickle, a name which is I don't even think people remember, जो जेनजी ऑडियंस है जिन्होंने बाद में क्रिकेट देखना चालू किया है, कि जेसन गिलेस्पी, मग्राथ, ब्रेट ली, शेन वॉन, ये बॉलर्स याद हैं. बिकल इतने याद नहीं, लेकिन उन्होंने उस वर्ल्ड कप जैसे स्टेज में भी ऐसी 2 परफॉर्मेंसेस दे दी थी. तो दैट आल्सो रीइंस्टेट्स द बिलीफ कि यार, और फिर वो जगरनॉट तो जो ऑस्ट्रेलिया का चला है, वो तो 2007 वर्ल्ड कप तक ही उठा के माने वो लोग. 2011 में जब तक इंडिया और युवराज सिंह से नहीं मिले थे, तब तक लगी रहा था कि ये टीम को कोई नहीं हरा सकता ढंग से. So, बट ये होता है, ये पैटर्न आता है टीम में, सेल्फ बिलीफ का एक जगरनॉट शुरू होता है. तो जैसे दैट युवराज इनिंग्स आल्सो किक स्टार्टेड इन अ वे, राइट? तब तक हमारा मतलब क्वार्टर फाइनल तक ठीक ठाक थे. वी डिडंट इवन टॉप द ग्रुप, आई थिंक, राइट? वी वर थर्ड इन द ग्रुप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिहाइंड साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड. आई थिंक वी वर बिहाइंड साउथ अफ्रीका, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. सेकंड थे हम लोग, सेकंड थे 11 ठीक है, व्हाटएवर. मतलब इन दो टीम, मतलब एक से हारे थे और एक से टाई करके 350 बना के भी टाई हुआ था. तब भी मोदी जी मैच देखने पहुंचे थे.
एंड T20 जो हमारा वर्ल्ड कप था यार, T20 जो वर्ल्ड कप था, Yeah, युवराज अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें भी दैट युवराज अगेंस्ट इंग्लैंड, युवराज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दीज आर इनिंग्स व्हिच, एंड इवन द फर्स्ट मैच यहाँ पे राहुल का, व्हाटएवर सेड एंड डन, मजाक बना रहे थे कि उसको कैलकुलेशन करके 100 नहीं कर पाया, बट आई थिंक वही होता है कि 100 ही याद रह जाते हैं, बट इन केसेस लाइक इंजमाम 60 और ये सब, these are things which trigger a juggernaut belief. आई थिंक वो उसको 97 पे रह गया ना, तो उसको भी लग रहा होगा यार 97 पे तो कोई और भी रह गया था. फिर मेरे को, but yeah, I have to acknowledge one more comment from Soumyadeep. Soumyadeep, कपिल देव ने तो स्टेटमेंट बोला है कि उसको नहीं इनवाइट किया गया. धोनी भी नहीं थे, सौरव गांगुली भी नहीं थे, the other two World Cup finalists, captain of ours. बट उन्होंने उनका कोई मतलब धोनी का तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, बट एटलीस्ट देयर सम स्वेटर पहन के बैठा हुआ है कहीं पे, शायद हिमाचल में या कहीं पे. धोनी का वीडियो आया है, उत्तराखंड गया है अपने. वो कह रहा था चाय पी लेते हैं, एक बहुत स्वीट वीडियो है, वो गांव वालों से रास्ता पूछ रहा है, वो बताते हैं, फिर वो कहता है चलो ठीक है पहले चाय पी लेते हैं. आज भी मैच देखते हुए कुछ आया है, वो पूरी मंडली जमी हुई है और 5-6 लोग वो काफी दोस्तों के साथ आया, उसका वीडियो आया. अच्छा ओके. और फिर एक और फोटो दिखा देते हैं, बिकॉज नीरव थोड़ा तो शांति से सोया आज. यार तो ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, बट just to say moment of the World Cup, fittingly he hit the winning runs, right? He hit the winning runs, yeah. It's had to be. Yeah. So I'll take one more question. Raj, you want to try answer this, or should I give him Harsha Bogle's answer? What is Harsha Bogle's answer? I'm assuming he said because they scored one more run than us. Yeah, the mathematical answer. No, yeah. Vicky, they batted better, they bowled better, they fielded better, they wicket kept better, if that's a word. So yeah, they were not under pressure. Kept wickets, and they won the toss. I think because the entire first innings can be called divided into two halves of before Rohit and after Rohit. हम before Christ and after death बोलते हैं. This is like before Rohit and after Rohit. या before Corona after Corona बोलते हैं. This is before Rohit after Rohit, and nobody else could recover. मुझे यार एक्चुअली में मतलब रोहित शर्मा के लिए सबसे पार्टी ऑस्ट्रेलियंस क्यों मना रहे हैं ये? इंदिरा गांधी का भी बर्थडे आज, पार्टी क्यों उनको क्यों मिलती है? क्या किया है ऑस्ट्रेलियन टीम ने? Yeah. Manan, I mean, this is a moot question now. अगर होते तो क्या होता, अगर अश्विन खेलते तो क्या होता, मतलब अब ये तो ifs and buts. But actually on that note, my belief is we might have missed Pandya, but if we didn't for the last 6 matches, we should not just single out this instance. कि आज ठीक है, आज हारे, but last 6 matches we've done well without him. And we were also thinking कि blessing in disguise हो गई कि वो चले गए तो अश्विन. Correct. Today on this day, our batters were not good enough, and our bowlers were not good enough. I want to read some portions of a poem called If by Rudyard Kipling. जब मैं छोटा होता था तो मतलब elocution competition में रट्टा मारा था, but it's a significant one. I mean, I'll read some parts which are I like particularly more. It says, if you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. Let's skip forward a bit to the very last line where it says, if this, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. I really find this poem really appropriate also for today. कि if अगर ये हो और अगर वो हो, में एक वो होता है कि यार सपने लो, जरूरी नहीं सपने साकार हो, बट सपने जरूर लो. जो आप सोचते हो वो जरूर शायद सच्चा ना हो, बट सोचना बंद मत करो. जीना मतलब you all these things come like it's okay. So I feel if you can, and that one line which is if you can treat victory and defeat in just the same manner, which is as is a line which you see when you in Wimbledon, you see it when you enter the playing arena. सामने लिखा होता है, and they always show you a picture of that with either Roger Federer at the back. So I think it's nice. मतलब मैंने तो अपनी जिंदगी में इतने disappointments और इतने disasters देखे हैं इंडियन टीम के साथ. अगर फैन बने रहोगे तो ये रिश्ता of no, Shubham, actually I'm not. I'm very disemotional because of the number of years I've already experienced this.
I've seen experienced this. enough heartbreak. It's already, I don't want to say been there, done that. But victory and defeat have very narrow margins. And बहुत ऐसे मैच देखे हैं जिंदगी में कि एक सवाल मैं अब नहीं होता, but अब नहीं this होता. is why I sport wanna is ask beautiful, you- because of the heartbreak, right? Yeah. Sport is beautiful because there is heartbreak. And I told you this And- that day also, that this Yeah. very same thing I have seen, 6 months ago. Like I was Correct. part of the GT environment, Gujarat Titans. We were in the final. We put up 214 runs, and we just completely beaten by a team which outplayed us. So I feel that उस दिन चुभा था, क्योंकि मतलब IPL फाइनल में आप 214 बना लो और आपकी टीम ऑरेंज कैप, बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैटर, बेस्ट विकेट कीपर, जो भी अवार्ड से सारे लेके जाओ, बट ट्रॉफी नहीं थी. दैट वाज इट. दैट्स द ओनली थिंग वी डिडंट हैव दैट डे. बेसिकली रणबीर कपूर ने कहा था कि टूटे हुए दिल से संगीत निकलता है. I also say कि टूटे हुए दिल से रुडयार्ड किपलिंग का इफ निकलता है. No, it's a beautiful सवाल quote. मेरे दिमाग में था कि But which is why the sport is beautiful. The best team doesn't necessarily win World Cups. We've discussed this before. It never wins actually. And apart from Australia is the best team now. I mean, is the fact that they won this final is incredible. I asked you this question: are they the greatest team ever? If you can Ever, win a World no, Cup, यार. if you can win a Test मैं World Cup, a T20 आपने World मुझसे Cup, कहा था होल्ड दैट थॉट, तो मैं वही उसी पे Yes, मैं उस टाइम पे वही okay. बोलना चाह रहा था. ठीक है. 2003 में वर्ल्ड कप, 2006 में दे वन द चैंपियंस ट्रॉफी. 2004 के एंड में उन्होंने एक वर्ल्ड 11 बुलाई थी ऑस्ट्रेलिया में और एक टेस्ट मैच खेला था 6 दिन का, जिसमें बड़ी बेइज्जती करके हराया था, जिसमें राहुल द्रविड़, सहवाग, ये सब मुरली, ये सब खेलने Brian Lara. प्रॉपर मतलब Correct. हाँ, जो उस टाइम पे टॉप रैंकिंग प्लेयर्स थे वो सब गए थे. Okay. तो अब आप ये देखिए कि उस टाइम पे देयर वाज नो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, देयर वाज नो वर्ल्ड T20 या T20 का फॉर्मेट जिसका अलग से, अगर उस टाइम पे होता तो उस टाइम पे भी वही टीम मोस्ट लाइकली जीतती. मतलब द पॉइंट इज कि वो टीम एक्चुअली में, मतलब वो कहते हैं ना कि जो डर था, एक डर का माहौल था उनके सामने. Absolutely. इट वाज इंटिमिडेटिंग. ये टीम के साथ वो नहीं है. Yeah, but वो I agree. 2003 And also we have also improved a बाहर lot. हुआ है. I think that is also Yeah. हाँ, I think we एक have also सवाल improved a lot ना, तो इस We वजह से have. भी I mean, we are. See, even in that era, we were second best always, right? There were enough days when we beat Australia. We beat them in Test matches in India and in Australia also, right? But we never I'm beat saying- them when it matters. I don't think we the were most. ever second best in the world at When that it time. matters, But मतलब- Australia के खिलाफ we always had better Yeah. performances. Like We Tendulkar have- and We in lost in 2000 the 2003 final. In 2007, we went and beat them in Australia in a best of 3 series. Not even a one-off. BB series. Yeah. Right, BBC Rohit the Sharma finals. with Yeah. Effectively, कब- that was कब- what 2007 में यार. The हाँ, 2008 में, 2008 हाँ, 2008 2007. में. हाँ, टेस्ट मैच. 7-8 correct. एक सवाल मैं So- पूछूंगा, एक like 2003 loss or 2023 loss, Hmm. which Which is more heartbreaking? Yeah, 2003 or 2000. 23. I was a young man in 2003. So, I we- was that- a yeah, boy I in think 2000. honestly, looking back on hindsight, that was an infinitely better team, right? There was no, Yeah. मतलब, there was no comparison. आज की We टीम, were very meek in the final, but वो टीम भी बहुत अच्छी थी. यार वो टीम बहुत ज्यादा अच्छी थी. मतलब we played, हाँ. मतलब हम 125 रन से आ रहे हैं जो फाइनली. Was So- reflective of the difference between the two. No, but I still feel 2003 was more heartbreaking, even though that the gap between the two teams was a lot more, as Nirav says. Yeah. But it was more heartbreaking. I don't know why. I don't know I why. don't know. But wo- I mean, I was more emotional then, I would imagine. I think for our generation that did not see the 83 win, 2003 felt like the first time that you could believe कि कुछ Yeah, होने same, वाला है. same. Something really nice is going to happen. Same. And then the fact that it doesn't happen सब was बोल रहे heartbreaking. comments में सब बोल रहे 2003 loss. Everybody thinks I 2003. don't remember it well enough because I came from through the 90s we never won anything, so final पहुंच गई बड़ी बात है यार. Correct. हाँ. 2000 so- Champions Trophy में final No, which is what I'm पहुंच saying. गए, The very first time you good, believe, first time you consolation half prize. believe, first time you half don't know. believe, and against Australia, India has always done a little better than you would expect, right? Because I don't think I disagree. Ki India was the second best team in the world at that time, but India was the only team which would always give Australia a run for its money, whether it was in Test matches. Vaughan would have a problem bowling to Tendulkar, and Lakshman was incredible against Australia. Harbhajan was incredible. तो वो 2003 में I think दिल थोड़ा ज़्यादा टूटा था, but ठीक है, होता है. Okay. Now we have come to a stage कि we know कि भाई 2019 में भी दिल टूटा है, 15 में भी दिल टूटा है. अभी पता है कि 16 टूटने में वाला भी है. टूटा है भाई, बस 17 तो हमें रोने की आदत है 16, basically. 16, 17 अब रोने की आदत हो गई है. साल टूट रहा है दिल.
अब रोने की अगले आदत साल भी पड़ गई। टूटेगा। अब बोलेंगे यार क्या पता। 2023 Yeah, खत्म होने yeah, को आया टिल टूट रहा है yeah, yeah. कुछ भी we'll find a reason. No, but I think we should celebrate, and as Ravi Shastri said, cricket is the winner, or he used to. Cricket is the winner, guys. No, we should celebrate a Yeah. great team. Absolutely great team, यार. No, no, तो that's They were definitely so there. आज हमारा मतलब bad day at office. That's all I can say. ठीक है. Yeah. So Yeah. it can become slightly better if we have any good memes. Do we? मतलब है थोड़े Do we? बहुत दिखा देते हैं। दिखाओ यार. मीमों का सिलसिला जारी रखना चाहिए. क्रिकेट का सिलसिला जारी रहना चाहिए. Manan, yes, there's hope, but that Champions Trophy is really far away. As in, it's in Pakistan, but it's 2 years away. But it's also away because it will not be held in Pakistan most likely. It will be थोड़ा दूर. तो यार मतलब सूर्य कुमार यादव कर देते कुछ परफॉर्म तो चल जाता। But क्या वसीम अकरम ने एक बार कहा था ना, अगर बुआ के मुच्छी होती तो बुआ नहीं होती, चाचा होती. तो वो if and but वाले सिनेरियोज ही हैं. और ये all of us, everybody of us, सारे लोग 5 करोड़ 150 करोड़ की आबादी. अरे यार मैं यही बोलूंगा. I'll just say this for like भाई विराट कोहली को सेंचुरी दिला दी. That's the only good thing. Do you guys agree with player of the tournament? अच्छा एक मिनट बाद में आता हूँ. Player of the tournament. Ooh, okay. We have to talk about that. Visionary है रिकी पॉन्टिंग मेरी नजर में. Incredible commentator यार, मतलब जो भी ये बोलता है वो इतना बढ़िया कमेंट्री करता है, मतलब oh sorry I don't know if we are supposed to use the word but आज I think सब allowed है. बस 2003 की बैट हेड को दी थी उसने आज, guys, just to tell you. Nice one. Nice throwback to 20 years ago. Yeah, 20-year challenge, guys. but आप लोग ये सोचे कि आरसीबी में था ट्रेविस हेड 1-2 साल. मैं हमेशा सोचता हूँ ये चीज कि वहां पे भी वो मतलब निखर के नहीं आ पाया, उसका गेम पता नहीं कैसे दबा रह गया. नहीं, because he didn't get games. He probably now not there anymore because he wants to win some trophies. हाँ तो कहाँ है अभी? WTC भी जीत गया अभी ट्रेविस हेड. अभी हर जगह player of the match. But Nirav, this is beautiful, right? I mean, so many times जो semi-final में perform करता है वो final में भी perform करता है. We've seen that Arvinder De Silva. We've seen that with even Virat Kohli for that matter. 2 or 3 occasions. Shane Warne, Mohinder Amarnath. Mohinder Amarnath was man of the match in 83. कितना कौन सा वर्ल्ड कप है? 11वां वर्ल्ड कप है ना? 12वां है 13वां है 12वां वर्ल्ड कप 79 89 13th वर्ल्ड कप है शायद. 13th वर्ल्ड 13 में से 4 बार हुआ है सिर्फ ये. तो इसको पैटर्न नहीं बना सकते. That's still quite a lot. 4 times. Shane Warne is 9 बार नहीं भी हुआ है ना. That's quite a lot. That's quite a lot. Okay. I feel it's quite incredible. I actually feel it's quite incredible. It's really so yeah, let's come to this. Let's come to the player of the tournament. Opinions, audience. Vicky thinks Shami hands down. Shami hands down. Second choice Rohit. So I don't have a problem with Virat getting it. I mean 9 out of 11 50 plus scores. I think there has to be value in a tournament for consistency and impacting the result. But then I would say same for Shami. Same consistency, same impact. Or for that matter for Rohit. But one wicket Shami. Today, 0 against, so 5 out of 7. So I don't know. मेरे को रोहित इसलिए लगा था for the simple reason कि वो बंदे ने आपको हमेशा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया. He was the leader. He was walking the talk. He was his bowling changes were pretty great. हार्दिक पांड्या की अनअवेलेबिलिटी झटका था, उससे भी रिकवर करा, कैसे भी बाउंस बैक किया. बट जस्ट द बैटिंग जो वो मेंटली डैमेज कर रहा था बॉलर्स को स्टार्टिंग में, दैट वाज उसकी वैल्यू नहीं है. दैट इट्स वर्थ. He was doing what Brendan McCullum did in 2015 with probably more consistency, slightly with lesser strike rate but more consistency, and while being captain. While being captaining my very question to you is, don't you have to look after the broadcasters? What will, now that Star Sports does not have any rights? मेरा जवाब था वो. So वही ना, that's the reason why I got answered. इसके लिए तो बनता है ना. विराट कोहली को क्यों मिला?
The funniest स्टार स्पोर्ट को व्यूज मिंट करने हैं। the funniest thing after the World और Cup क्या is दिखाएंगे अगले 2 महीने? the first Exactly. package that I उसकी was seeing स्पीच आई है on कोई विराट कोहली की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? नहीं they क्या didn't speech interview देगा him. भाई? They didn't I think interview him. वो आईपीएल की क्या तरह नहीं पहली होता बार यार सुन कि रहा हूँ। सुपर सिक्सेस वो सब चलता रहता है 2 घंटे बाद। आई नहीं, आज आईपीएल होता है। They सिर्फ आईपीएल didn't interview him, but the first Speech package that was उसकी आई shown थी। on first package that was shown on TV after the winning runs have been hit was Virat Kohli scored 50 today. I'm like, yeah. टॉप स्टोरीज टॉप स्टोरीज Wait, मैच के बाद जो टॉप स्टोरी the guys, Australia has won the World Cup. That's the top story. Yes. मुझे मतलब Cheers to them for बड़ा that. डिसअपॉइंटेड हूँ कि जो ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी भी अब थोड़ी गिर गई है। जो पहले हुआ करती थी, अब कुछ भी चलता रहता है। अभी तो फेयरली चेंज ही हो रहा है ना ब्रॉडकास्टर। मतलब मैं ये देख रहा था कि मैच मैं आपको बताऊं, मेरे चैनल point चेंज याद होता है, वो रहता वही आजकल मेरे ख्याल से Setup कमेंट्री वही है। पैनल सेम हो जाता है। जो हाँ, बट एक studio शेड्यूलिंग team और है। प्रोग्रामिंग होती है, वो तो उनके हाथ में होती है ना चैनल के। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इफ आई मे 2021 में अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, जब अपने ने गैबा टेस्ट जीता था ये वो। तो हाँ। एक बस सिंपल स्टूडियो सेटअप था जिसमें हर्षा बोगले, आई थिंक ये डोमिनिक कॉक और एक दो प्लेयर और थे, इनको इंटरव्यू करता था एंड दैट वाज इट। बट वो इतना उसकी क्वालिटी आप कॉन्वर्सेशंस की देख लोगे ना। एक ऑस्ट्रेलियन बहुत बंदा भी था, बहुत अच्छी थी। मेगरा था, बहुत अच्छी थी। मेगरा वाज देयर। लिमिटेड लोगों को अच्छा लगेगा ना। देख जो मास है ना, वो उनको तमाशा चाहिए। वो तमाशा जो मिलता है वर्ल्ड कप में, आईपीएल में, यू नो, द मास एंटरटेनमेंट, जनरल एंटरटेनमेंट। इट्स नॉट मतलब ज्यादा उनको क्रिकेट मतलब नहीं देख, क्रिकेट जो प्योर कॉन्वर्सेशंस है। और उसी लिए मतलब जो है, जो पवेलियन की हम बात करते हैं, को चाहिए जो आप कह रहे हो। पवेलियन में भी वो ही होता है एक्चुअली। देयर इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, हंसी मजाक, बट मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, जो हम जैसे लोगों को अच्छा लगता है, राइट? जो तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो रीजिंग सुपर हिट मेन स्ट्रीम मतलब नंबर्स हैं उनके, बट दे हैव फाउंड इनफ पीपल जिनको अच्छा लगता है और वो सब देखते हैं अभी। तो अब मैं एक एग्जांपल देख रहा था जिसका टॉस के बाद और वो एयरफोर्स का शो हुआ, उसके बाद जो लास्ट के 10-12-15 मिनट थे, उसमें दे वर नॉट टॉकिंग टू पीपल प्रॉपर्ली कि क्या क्या वो उसमें पुराने शॉट जो उन्होंने प्रोड्यूस एवी मतलब जो नहीं, in fact I think they were talking to people, but in India we didn't see a lot of it because the world feed is slightly different and it kept continuing for a while. Because I'm seeing some clips on social media which I never saw on my TV right now. तो कुछ क्लिप्स आ रहे हैं of more interviews of other Aussie cricketers. टीवी दुख से तो नहीं बंद हो गया अपने आप ही। हाँ, टीवी मत दिखाओ यहाँ पे वो चला गया। करेक्ट। By the way, एजाज अली ने लिखा है, पैट कमिंस ने मस्त ट्रोल किया। मतलब he said in the man of the match in the final presentation कि to see 130,000 Indian shirts is an experience we will never forget. The good thing is they were not too noisy. I am like भाई यार, मतलब प्यार से उसने ग्रेट क्राउड भी बोला है, ग्रेट क्राउड भी बोला उसने। हाँ, ग्रेट क्राउड तो बोलना पड़ेगा यार, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से सबको चाहिए भाई। वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है, ही हैजंट वन द इंपॉर्टेंट वन। आईपीएल कब जीतेगा तभी उसकी इज्जत होगी इंडिया में। किससे खेलता है वो? केकेआर से ही है ना अभी भी? केकेआर में था पिछले केकेआर में था, बट इस सीजन अवेलेबल नहीं था क्योंकि उनका थोड़ा प्रायोरिटीज अलग है ना, उनको एशेस चाहिए। 24 में आएगा वो, ऑफिशियली बोला वो 24 में आएगा। एजाज अली ने लिखा है नीरव सर इज वाइब। वाइब है इंग्लिश में गुड वाइब, बैड वाइब। कौन सी वाइब? बोलना नहीं चाहता हूं मैं। नहीं, बट हाँ, बट एक मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है गाइस टू ऑल ऑफ यू इन द मतलब टू ऑडियंस आल्सो, कि अभी वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, क्रिकेट फैंस क्या करेंगे? मतलब स्टार पे जाओ, रिहैश मिलता जाएगा आपको दिन भर। कोहली की भाई 4 दिन बाद और क्रिकेट हो रहा है, T20 सीरीज हो रही है यही 2 टीम के बीच में। I mean it does not stop. I'm sure the players will be different. I think टीम के अनाउंस हो गए हैं ना सारे? नहीं, Indian team has been announced. I don't think so, ना? I don't think ऑस्ट्रेलिया टीम भी नहीं अनाउंस हुई है। स्टीव वो मतलब मेरा मैथ्यू वेड कैप्टन है मेरे ख्याल से। मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया टीम अनाउंस हो चुकी है क्योंकि उन्हें ट्रैवल करना है ना, बट इंडियन टीम आई डोंट नो हु इज द कैप्टन एंड आई हैव मिस्ड दैट अनाउंसमेंट अगर हुई है तो। यार कुछ तो बात चल रही थी कि या तो ऋतुराज होगा या सूर्या होगा,
क्योंकि हार्दिक इज सूर्य कैप्टन है शायद से, ऐसा प्रेडिक्टेड है। अक्षित का, हाँ भाई, अक्षित का कमेंट, होल कॉन्टिनेंट अगेंस्ट वन कंट्री, मतलब मेरे को केएल राहुल की भी याद आ रही है। But I mean, New Zealand defeated us in 2019 in the semis. Australia defeated us in 2015 and 2019. Oh my God, whole continent against a single country. Nice one, Akshit. नाइस वन अक्षित. Well played, mate. होता है. So हार्दिक पांड्या अच्छा दोनों ये series भी के है ना लिए चक्कर, ये टीवी भी है, हॉटस्टार भी है, हाँ। मतलब इसमें ना सब में अच्छा। अलग अलग फीड चल रहे हैं. अच्छा, हाँ. तो हिंदी में किसने क्या, कुछ अलग क्योंकि चल हम, रहा था। मुझे तो याद नहीं रहता ना, मैं स्विच करते रहता हूँ जैसे अच्छा। सर्टेन पीपल कम इन. जो हम क्या आप उनका जो हम नहीं नाम लेना करेंगे. चाहेंगे? मैं नाम तो ले लूंगा, मगर क्यों ये बेइज्जत करूं यार, मतलब मैं क्यों मैं कौन होता हूँ किसी का नाम लेना. आज भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, मैं बात नहीं करना चाहता उस बारे में, बट आज क्या कंट्रोवर्सी हुई? अभी हिंदी बोल दिया कमेंट्री तो में बोलिए। हुआ कि मैंने सुना. किसी ने बोल अच्छा, दिया मुझे नहीं कि पता. अनुष्का और उस पे कमेंट किया अथिया पे. हाँ अच्छा, मतलब इन अ बैड वे. अनुष्का या मतलब वेरी उधर बैड, से मैं नाम नहीं ले रहा, बट उन्होंने कहा कि अरे they wouldn't know anything. मतलब ये लोग पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, शायद इनको क्रिकेट की इतनी समझ है भी कि नहीं, मुझे पता नहीं. मतलब एक ऐसे ही पता नहीं passive होगी, comment. नहीं पता नहीं होगी. समझ वर्ड यूज किया उन्होंने, तो हाँ. थोड़ा अच्छा, that's I don't know this, but that's sad. Okay. Yeah, very famous Okay. person. Yeah, figure. Not difficult to find out. Yeah. हाँ मतलब ठीक है यार, किसी को कुछ बोल दिया, किसने कैसे इंटरप्रेट किया अपन. आजकल बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, सोशल मीडिया वोकनेस सब है, मतलब और होनी भी चाहिए, मतलब वो केयरफुलनेस मेरे को लगता है. बट हाँ यार यहाँ मतलब यार दैट्स व्हाई लाइक रवि शास्त्री, उसको कोई फर्क नहीं है, कुछ भी बोल देता है. लाइक वो दिल जो बोलना चाहता है बोलता है. और ये ना, ये जो ट्रोल का फेयर होता है ना, ये हम सबको मारा जाता है. नहीं ये ट्रोल की तो बात ही नहीं है, ये तो बस बेसिक वो बात थी कि मैं जैसे मतलब आई हैव आल्सो मेड दिस जोक्स विद माय फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, तो वो फिर वही कहते हैं कि अरे यू आर जनरलाइजिंग, मतलब अगर विमेन है तो हम फैंस नहीं हो सकते क्या, क्योंकि उनको छेड़ते हैं कि अरे तुम्हें रचन रविंद्र क्यूट लगता है इसलिए देख रहे हो ऐसा. बट वो शुभमन गिल के लुक्स के चक्कर में, अभी अनूप जैन एक सिंगर है, उसने ही बोल दिया था एक पॉडकास्ट में, तो वो भी बड़ा वायरल हुआ था कि हमारे टाइम पे जब क्रिकेटर्स थे तो वो तो लड़के नहीं लगते थे ना, वो तो पापा के दोस्त लगते थे. तो सब लड़कियां क्रिकेट नहीं देखती थी, ऐसा जोक मारा उसने. बिकॉज अब इतने तो मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट अ ट्रू थिंग, बट वो एक चल रहा है. बट किस टाइम पे क्या बोलना है वो आई थिंक आप ये क्या गंदा standing है आपकी. ये गंदा स्टीरियोटाइप है ना, ये आई थिंक एक ट्रैप है हाँ, जो हम सारे exactly. क्रिकेट फैंस भी, मतलब वी फॉल इनटू दिस ट्रैप की जैसे हमने लड़कियों को नहीं पता है क्रिकेट के बारे में. नहीं लाइक करेक्ट, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर वो नहीं बोल I रहा है, वो नहीं disagree. सोच रहा है. My friend, good friend, Like, she Of course, bro, knows. वही तो बात हो रही है कि नहीं ऐसा, बट it's a very bad She knows stereotype. with stats as well. No, like No, maybe I remember they don't- we had said that the best highest score by a Australian was Maxwell, but actually Belinda Clark ने उसके Clark ने किया था, 15 साल पहले 200 किया था. So We often missed the make a women lot of these cricket mistakes altogether. First which we World Cup should- was played by women, not by men. women, 2 which years we should. before. Yeah. 2 years, yeah, before the first 1973. Also, I think Sachin it's- Tendulkar को भी बोलते हैं कि he's the first person in the history to score 200, but he wasn't. नहीं, As वो lovers actually of the रवि game- शास्त्री ने one of his immortal lines, he said the first man on the planet. उसने India जो Superman. India Superman, हाँ. correct. Yeah, he The didn't first get it man wrong. on the but planet, he's the Superman from India. ऐसा बोला था उसने. Superman from the India. as fans, as lovers of the game, men, women, anything, it's our responsibility to, like, keep remember that, like, to talk about both men's and women's cricket in the same breath. Yeah, because it's fabulous to watch the sport. Also, it doesn't matter who's playing. इंटरेस्टिंग ट्रिविया जो हमारे हाँ. टीम ने दी है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी 20 वर्ल्ड कप टाइटल्स है. Oh my god. 20 भाई बाकी देश हैं, मतलब 20 वर्ल्ड कप टाइटल्स गाइस. ये I think men's women मिला के ना. रिकी मेंस पॉन्टिंग, वुमेन में मिला के, आई डोंट नो उसमें टेस्ट चैंपियनशिप है कि नहीं, बट अगर नहीं है तो 21, अगर है तो स्टिल 6 तो ओडीआई वर्ल्ड कप ही हो गए, प्लानिंग, एक वर्ल्ड टी20 हो गई, ये अभी मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, और एक वर्ल्ड टी20 डब्ल्यूटीसी, तो 8 तो यही हो गए. Women's का सारे है ना, मतलब दो women's के ज्यादा वर्ल्ड कप सारे ऑस्ट्रेलिया 8-9 इसके सारे हैं. प्लस WTC है, प्लस T20 है. करेक्ट. हाँ मैं वही कह रहा हूँ.
Correct. ये मुझे लगता है Beast. what is it, this World Cup winning captains are Meg Lanning, Cumming, Ponting, Going, bordering, they are Steve going Moyne. with the trophies. keeping They are coming and going with the trophies. नहीं बट लाइक गॉट टू गिव इट टू देम यार, मतलब क्या टीम है. आई नो कि मतलब हम कहते हैं कि यार फिर से ऑस्ट्रेलिया नहीं, बट Yeah. यार शुभम, They gave us the blues again. for you and all other people जिनको मूड ठीक करना है, start with BWC Yeah. season 3 episode कौन सा episode है? 3 आशीष मेरा, वहां से शुरू करो Five. and then Episode go five. forward. episode 5 है, बहुत साल हो गए, याद नहीं है. आशीष नेहरा Sorry, की जान सुनो, लो. ब्रेकफास्ट में वो क्या खाते हैं? कट पपाया, फिर आपका दही, फिर पराठे को उतारने के लिए चाय भी चाहिए. नहीं तो बंदा कहता है या तो नान कट ले या बंदे की जान कट ले. जो बंदा नेशनल टेलीविजन तो नहीं कहूंगा बट यूट्यूब पे ये कह सकता है जो अपनी भैंस नहीं है युवराज सिंह तो उसका इंटरव्यू एक्चुअली मैं देख के, और आशीष नेहरा को इंस्पायर करके नेक्स्ट सीजन में जो पहला एपिसोड आया है विराट हाँ, कोहली का, से इंस्पायर वो होके भी देख- हाँ, मैन हाँ, ऑफ वो द भी टूर्नामेंट देख मिला लो। है उसको, थोड़ा हिंट दे दे तो. वो भी देख लो गाइस, हाँ. 2 एपिसोड है विराट कोहली के. But guys, favorite moment from the World Cup? Apart from Maxwell's innings, क्योंकि सब लोग वही बोलने वाले हैं. Apart from that, That was not a moment here, that was an hour and a half. मतलब हाँ, वो मतलब हाँ. एक मोमेंट. यार मैं मोमेंट नहीं कहूंगा बट मेरे को सबसे ज्यादा जॉय मिला था जब रोहित शर्मा बैटिंग करता. हाँ यार, हर वक्त. Being very honest, मतलब वो हर वक्त. आता था, वो Yeah. पता था कि एक पॉइंट पे पता चल गया था वो ऐसे ही आएगा, मारेगा, चला जाएगा, लेकिन हर बार वो इतना नया थ्रिल, ऐसा लगता था हर बार आई एम रीलिविंग और रीस्टार्टिंग दैट जर्नी ऑफ लिविंग दैट थ्रिल. इट वाज हाँ. जस्ट, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में, इतना जॉय दिया उसकी बैटिंग ने इस वर्ल्ड कप. मैं दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि फॉर मी इज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट. थोड़ा लंबा आंसर देना चाहूंगा मैं, बट इट वाज नॉट अ मोमेंट पर से, बट इट वाज कि जो अंडररेटेड अंडरडॉग्स टीम है उन्होंने भी 2 मैचेस जीते हैं. Right. लाइक हाँ. अफगानिस्तान वन Yeah, I agree. I think for me it 4 was, matches. it was the Netherlands beating South Africa. I mean that day was कुछ लगा यार, कुछ है, मतलब you know, I feel happy, like हमारा कोई लेना देना नहीं था as Indians, but just seeing an underdog, I mean I felt better on that day than I did on the day Afghanistan beat England. मेरा एक्चुअली फेवरेट मोमेंट अभी है, क्योंकि वो होता है ना जब आप कई लोग होते हैं वो दोस्त के पेरेंट्स के सामने है ना बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि वो इम्प्रेस हो जाते हैं. मैंने राज के फादर विक्की साहब से कैप्स में लिखा है उन्होंने कि शिशिर इज राइट ऑन रोहित, सो थैंक यू सो मच विक्की सर. बट हाँ, रोहित शर्मा वाज एब्सोल्युटली एग्री विद विक्की सर, ही वाज टोटली. वो बस एक कितना 2 ही मैच नहीं खेला है रोहित शर्मा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक मैच ऑस्ट्रेलिया वाला, पहला और श्रीलंका वाला, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया. तीसरा कौन सा? क्यों तीसरा कौन सा? Because he has 840 plus innings. ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और एक सेंचुरी है. Pakistan 840 प्लस नहीं, innings, अफगानिस्तान centuries. पाकिस्तान तो 86 मारा है. नहीं, 2 ही है, एक श्रीलंका और ये ऑस्ट्रेलिया. मेरे ख्याल में एक में 35 पे आउट हुआ होगा, लेकिन फेलियर मोस्टली 2 ही है. पहले तो मुझे 2 ही याद आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, बट इम्पैक्ट प्लेयर हाँ, रियल इम्पैक्ट प्लेयर. मतलब this is also mood. this was a fun moment also. Yeah, I mean, of course the dance itself, but just the Afghanistan story यार, मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, almost ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी. I mean, Australia. This comment I don't agree for. I don't think it's about rankings. It's about being the best. So वो हर एक स्पेशलिस्ट के पास आता है. So does Rohit. Rohit also wants to dominate, prove he's the best. And उसके byproduct is the ranking. Which is I think now he's reached number 5 in the ODI. अभी और improve करेगा. Highest of his career. I think ये एक consistent narrative भी रहा है ना ये वर्ल्ड कप में कि रोहित is not played selfishly, जो इम्प्लाई करता है कि बाकी लोग सेल्फिशली खेल रहे हैं. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक बंदे का अलग रोल है इस टीम में. तो वो आशीष नेहरा पुट इट अप वेरी वेल, नो? उसका एक कोट लगा दो यार, अगर लगा सकते हैं. क्या कहा था
आशीष नेहरा ने एक दोनों को कॉन्टेक्चुअलाइज एक कोट किया था। हाँ, मैं जानता हूँ। रोहित ऐसा खेलता है इसलिए कोहली ऐसा खेल सकता है, एंड कोहली ऐसा खेलता है इसलिए रोहित ऐसा खेल सकता है. It's सेम कॉइन के दो साइड्स. करेक्ट. आई मीन देयर विल बी अ फ्यू ओकेजन्स जो आप, हाँ, कुछ ओकेजन्स होंगे जो आप कहेंगे कि शुड रोहित हैव प्लेड दैट शॉट, या कुछ ओकेजन्स होंगे जब कोहली इज प्लेड स्लोअर देन यू वुड हैव लाइक्ड हिम टू, बट they've complemented each other beautifully, and I think this entire batting lineup has, जो आज नहीं हुआ, but through the cup that's been the story. Yeah. तो ठीक है guys, so I think we've dissected it long enough. I mean, mota we didn't play well. Any final thoughts? they played better. I think I'm भाई just मतलब really curious. Sorry. यही है कि वर्ल्ड कप चल रहा है तो आप एक अपोजिंग बंदे का स्टैचू मत लगाओ, बिकॉज स्टीव स्मिथ का स्टैचू लग गया इमेजिन वानखेड़े में हो रहा है फाइनल. उसके बाद मैक्सवेल ने वानखेड़े पे 200 बना दिया एंड ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई. तो आई थिंक दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि होम वर्ल्ड कप कर रहे हो, एलिजिडली पिचेस भी डॉक्टर हो रहे हैं, जो भी एलिगेशंस, अजीब से एलिगेशंस या कुछ सही है गलत है जो भी है कॉन्वर्सेशन, लेकिन आप स्टैचू बनाते वक्त स्टीव स्मिथ का मत बनाओ, फिर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप नहीं लेके जाएगी अगली बार. बट अभी हाइंडसाइट में समझ आता है ना कि क्यों बनाया स्टीव स्मिथ का स्टैचू. विजनरी था वो. Sculptor नहीं, I would yeah. also like to quote Kapil Dev from a tournament in the late 80s. जो प्राइज उस टाइम कपिल देव को पहले ना मतलब इंग्लिश नहीं आती थी, मतलब वो काफी ही लर्नड इंग्लिश मच लेट इन हिज लाइफ. तो इनफैक्ट एक प्रोडक्ट को वो इंडोर्स करते थे कॉल्ड रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. अरे हाँ, मतलब योर some of people might remember like Vicky. तो मतलब वो सीखे हो, मतलब 1-2 साल 83 वर्ल्ड कप के बाद 1-2 साल में इंग्लिश उन्होंने सीखी. तो इस आई थिंक इट वाज, आई कांट रिमेंबर कौन सा टूर्नामेंट था, बट हिज लाइंस वर we play good match, Australia play better, we wish Australia best luck for coming series. That was as simple as that, and I think that's my sentiment. Boys played well, other boys played better, but yes. we play good match, Australia play better. प्रेम का सवाल, by the way, is it going to be Rohit's last World Cup? Last ODI World Cup? ODI World Cup? Yes. 4 साल बाद Rohit will be what, 39, 40 if I'm not wrong? I think he's 36. He's turning 37 in April. 7. हाँ, तो मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. I doubt it. And I'm just curious to see अब कैसे शेप करते हैं सब कोई करियर आगे के, क्योंकि सब अपने अपने कुछ तो हाईलाइट में T20 खेलेंगे. रिसेंट में देखते हैं, 8 महीने बाद T20 है. We don't know. He's not played a T20I for a while. Nor is Virat. For a year almost. तो क्या अप्रोच रहेगा? T20 वर्ल्ड कप के बाद तो कुछ नहीं खेला ना. Most likely नहीं, जहाँ तक मुझे याद है नहीं खेला. World Cup के बाद रोहित and Virat both have not played a T20I. तो how are they viewing this team going forward? वो interesting रहेगा देखने का. But lot of people have had the last World Cup. But I think अब इच्छा तो होगी ना कि एक वर्ल्ड कप जीतना है. But I'm feeling that our weakest chances in our best chance of winning a world ICC trophy is World Test Championship. Second best is 50 over. ODI and T20 is the least. I agree. I agree. But it's also the most unpredictable format. So nobody knows kya hoga. Wo, that's also there. But I'm saying farewell today for a lot of people. No? Warner ka last match. Probably Stark ka last one-day match. Probably Smith also. Quinton de Kock last one-day match last. Smith तो यार 34 का ही है. 2 days ago. I doubt they'll. पता नहीं. Doubt क्या पता नहीं, मतलब तो आई डोंट नो, मतलब ऑस्ट्रेलिया का वो होता भी है कि वो ट्राई लेगेसी कंटिन्यू करना चाहते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं. तो 7 लोग थे 2015 के. दे विल होप कि अगले बार भी 5-6 ना निकल जाए, मतलब थोड़े बहुत तो रहे इस वर्ल्ड कप. तो आई थिंक दे अनाउंस मार्श ऑलरेडी एज द T20 कैप्टन. तो गोइंग एटलीस्ट 1 साल तक तो मार्श के अंडर एक टीम बनेगी नई वाली. आज आंख मारी थी उसने खेल राहुल को जाते हो. अच्छा, और क्या भाई सस्पिशियस लग रहा है ये क्या चल रहा है. नहीं, आई थिंक इट वाज मोर लाइक कि यार यू गॉट लकी विद द कि मेरा इतना गंदा शॉट. वो ओके, वो दैट वन विकेट टेकिंग द वर्स्ट बॉल एवर.
Bumrah हाँ, bowled you took a wicket उसको or but a catch ये, of the. by the way, ये I don't know if you have noticed it. ये interaction between the two different sides, ये बहुत मजा था. Today there was a moment when Virat Kohli hit a shot to David Warner, and David Warner fielding कर रहा था boundary पे. They were fielding like brilliant, right? And Kohli managed to take two. After he took two, he did this to David Warner, and David Warner smiled back. तो वो मतलब जो in between एक दूसरे के साथ जो rivalries रहती है इनकी, that I think is very sweet, yeah. And of course Travis Head के knock के बाद Rohit, Bumrah, KL, Kohli, they were all either clapping him or patting him on the back. I thought that was beautiful to watch, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगा कि the crowd was booing Head एक दो बार, but it was beautiful to watch the Indian cricketers be very gracious. Okay, I'm going to take the last comment and try and reflect on this. It is, yes, for all of us, it was very hard to watch tears in Second Rohit's time. eyes. Second time. But I think we should also remember all the joy he's given. Yeah. And, rest well, sleep well, wake up, another day begins tomorrow, and a whole cycle of new World Cup preparations begins for 2027. So it's been for us a long journey. We've tried this Oaktree Dugout live pretty much. We did all the matches, right? Eventually, didn't we? Yeah, we did. India Afghanistan Initial से, 3-4. Initial So, 3-4. yeah, India पहले दो Afghanistan जीत से ली. we started. Okay. We did every So one. thank you guys for Everyone. joining us. There's still 85 of you here. I really appreciate. कईयों से हमारी दोस्ती बन गई है, कईयों से रिश्ते जुड़ गए हैं, and we hope that we should try and do this again sometime soon. We'll take a call. We'll meet and figure out. And so thank you everyone for joining us. And I guess this is it, man. This is it. Yeah. Final Yes. goodbyes for this Yeah. World Cup. We'll come soon. It's, We'll come soon. it's already midnight Keep and cheering. another day has Yeah. and believe. Yeah. Right. So thank you, Bhargav. Thank you, Jas, Somideep, Manan, Shubham. A lot of you are here. Prem, AS, Shabbir's Thank you so World. much. Somadeep ने लिखा है, we love you. Vicky. We love you back. Love you. Yeah. Your support means so Shubham. much. Thank you. All right. And Dil Dil India. Till Good night. India.